Good evening, everybody. Am I audible and visible to all the participants Yes, or to most of them? ma'am. Good evening. Can I get a quick thumbs up? Thank you so much. And here goes the thumbs up and yes, ma'am. Now, can we have the cameras on? क्या आप सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लेंगे? So that we can have a very, very interactive session. And I know who is across in the virtual seats. To the lovely participants whom I'm addressing, thank you so much for switching on your cameras. जिन्होंने कैमरा ऑन नहीं किया है, it's an earnest request to please switch on your camera और 1 घंटा आप हमें दे दें ताकि you can listen to the webinar. It's a very, very interesting topic. Weight. तो कितने लोगों को वेट का इशू हो रहा है? In fact, right from this time, the teens start, especially for women. It goes on post-menopause. There are ups and downs, and it's like कभी वेट ऊपर हो रहा है, कभी नीचे हो रहा है, and there are a lot of me's. And we all know weight is a big problem, especially for the ladies, because they always want to look good, wear good clothes at any age. तो अभी हम क्या कर सकते हैं? I'm sure you've tried n number of diets, keto diet, vegan, and जाने क्या क्या आप लोगों ने ट्राई किया है. But believe me, here you're going to hear something unique जहां आपको डाइट नहीं करना पड़ेगा. तो कितने लोग इच्छुक हैं जानने के लिए कि अरे वाह, हमें वड़ा पाव खाने मिलेगा, हमें रसगुल्ले खाने मिलेंगे और साथ ही साथ वेट लॉस भी होगा. How many people are interested to know further as to how this is possible while working on your internal system? Internal system यानी कि जब आप अपने मेटाबॉलिज्म के ऊपर काम करते हैं, that too not by restricting yourself, not by stopping your cravings, but just working on your internal system by certain breath hold techniques, the wonder happens. Okay, so a lot of people are very, very curious to know. So let me not waste much time and let me share the screen. Thank you so much. Is the screen visible? Yes, ma'am. It's visible. Thank you so much, Ashwini. So now we come to the Ameda Shleshma Shuddhi webinar. तो श्लेष्म शुद्धि चिकित्सा means हम weight loss, अमेदा यानी कि fat loss. Okay? Extra pounds, extra kilos, extra चर्बी जो आपको दिख रहा है उसको हमें घटाना है, but in the correct way. Weight management which is going to last you forever. It is not a short-term proceeding. So let's move further. Namaskar, I welcome you all to the Ameda webinar. My name is Rachna Bothra and I'll be your host for today's webinar. I'm a part of an organization called Avisa Healing and Fitness Private Limited. In today's webinar, we will present to you a unique way to manage your weight without the diet plans that restrict you and are not the correct way to stay in shape. Actually, weight loss is just one part of this program. It's much more than just weight management. So now I'd like to introduce you all to Swami Raj Vibhuji, a rare Kumbhak yogi. Swami Raj Vibhuji has been transforming lives of thousands of people who have not found any relief even after years of using allopathic medicine, not only in India, but Europe and the US as well. He has a unique perspective about the human body and
how it functions and how it can be corrected and balanced back to its natural state. Let's come to the fact as to who is this webinar for. For people who are tired of temporary solutions and are looking for a natural and permanent solution. For people who want to take charge of their health in their own hands and are willing to work on themselves to come out of their fat or weight issues. Weight management with Kumbhak the right way, freedom from diet plans, restrictive diet plans. So today you learn what you'll be learning in today's webinar. आप क्या सीखने वाले हैं आज के webinar में? What is fat? Why the body creates fat? Body में fat क्यों create होता है? क्योंकि आपके बॉडी में कोई ना कोई रिस्क है. वो रिस्क को मिटिगेट करने के लिए बॉडी को फैट क्रिएट करना पड़ता है. A new way to look at weight management. What is Kumbhak? Why a need for Kumbhak? How Kumbhak works on the body. So let's hear from Swami Raj Vibhuji what exactly he has to say about weight management. Thank you so much for listening to me patiently. I will just share with you how we are going to proceed in the webinar before Ashwini starts sharing the video. आप लोग अपना नाम और नंबर and your problems related to weight, which might be very, very minute for anybody else, but आपके लिए आपका quality of life spoil कर रहा है, तो please उसको लिख डालें. Whatever problems, it could be diabetes, it could be BP, it could be fatigue, it could be insomnia, anything that is spoiling your day and your quality of life. Please usko likh daliye. So Ameda is not only about weight management, it's about rehabilitation. It's about a journey where you learn how to exactly retune your system so that it bounces back to its original health. Of course, we were not born with so much of weight. So as the years go by, we distort our own body knowingly or unknowingly. तो अब हमें उस पे काम करना है so that we bounce back to health. So let's not waste much time. आप लोग लिख डालिए आपके problems along with your name and contact number. After this, we will be sharing the video by Swami Raj Vibhuji. उसके बाद हम लोग program details share करेंगे and we will be having somebody live from the Ameda Chikitsa, Shleshma Shuddhi Chikitsa, who's been a participant. Of course, last but not the least, Swami Raj Vibhuji himself will be joining us live to share what exactly is the problem that you are facing and how to come out of it. Thank you so much. Namaste. And over to Ashwini to share the details. Yeah, ma'am, give me a few seconds. Thank you so much, Ashwini. Weight loss. पहली बात तो लेट्स लुक एट इट फ्रॉम अ लिटिल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. हाँ, वेट जो हम केवल कह देते हैं ना, केवल इसको बहुत वेट कह रहे हैं, नहीं, इट हैज अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. श्लेष्म शुद्धि चिकित्सा जब हम बोलते हैं तो वेट लॉस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट, केवल एक ही पार्ट है. अच्छा, मैं आपको एक बड़े सिंपल तरीके से कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसको समझिए. मेनी ऑफ यू वुड हैव मेड उपमा बनाया होगा ना आपने. तो ऐसा कीजिए कि एक कढ़ाई में सूजी डालो, पानी डालो, ठीक है, और उसको मिलाने की कोशिश करो. नहीं मिल रहा. क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि कुछ मिस कर रहे हैं हम. क्या मिस कर रहे हैं?
अरे आग तो जलाया नहीं हमने, क्या मिस कर रहे हैं? आग तो जलाया नहीं, और उसमें खूब सारी चीजें डालने की कोशिश, हेल्दी उपमा बनाएंगे, हाँ, खूब सारे वेजिटेबल डाल देंगे और पता नहीं क्या क्या डाल देंगे, मगर आप आग नहीं जलाएंगे तो उपमा नहीं बनने वाला। टेक इट एज अ गारंटी, पक्का गारंटी ले लो, ठीक है। सो व्हाट आर वी मिसिंग? अपने शरीर में भी यही चीज मिस कर रहे हैं। जैसे बाहर होता है ना, वैसे ही हमारे शरीर में भी होता है, ये पार्ट ही मिस कर गए। और आपको मालूम है, उपमा अगर आप पहाड़ में ऊपर जाके बहुत प्रेशर कम हो जहां पे बनाने की कोशिश करेंगे तो बनेगा नहीं, बड़ा तब भी मुश्किल है, ये आग जलाने के बाद भी नहीं बनेगा। तो दो चीजें जो हम मिस कर रहे हैं, 2 points that we are missing is pressure and temperature. और इसका ख्याल पूरे के पूरे मेडिकल साइंस में इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। वो मटेरियल तो के ऊपर तो रिसर्च करते हैं, केमिकल के ऊपर, केमिकल रिएक्शन के ऊपर रिसर्च करते हैं, केमिकल कंपोजिशन के ऊपर रिसर्च करते हैं, मगर वो भूल जाते हैं कि आपके शरीर में कुछ भी डाल दीजिए, जब तक बाकी दो फैक्टर जिसको आयुर्वेद में पित्त और वात कहते हैं, जिस देखिए मटेरियल केवल जो होता है ना उसको श्लेष्म कहते हैं। आप मटेरियल डालते हैं, भोजन डालते हैं, दैट इज श्लेष्म। लेकिन इस्तेमाल कैसे होगा? इस्तेमाल करने की क्षमता अलग अलग है हर एक इंसान की, है कि नहीं? लेकिन हम हर एक को वही मल्टीविटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन डाल के ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ना, मगर आज तक कोई ठीक हुआ बताइए? पिछले 100 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं, लेट्स टेक 100 years ऑफ एक्सपीरियंस। कौन सा इंसान है जो कि अपने डिजीज से बाहर आ गया कुछ डाल के? डायबिटीज ठीक हो गई, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो गया, थायराइड ठीक हो गया, कौन सी बीमारी ठीक हो गई? कोई भी बीमारी ठीक नहीं हुई। इतना सारा विटामिन खाने के बाद में सारी जनता हेल्दी हो गई क्या? तो कौन सी डिजीज, कौन सी बीमारी कम हो गई हमारी पॉपुलेशन में? कोई भी कम नहीं हुआ, सब बढ़ गया। अच्छा, यहां तक कि कैल्शियम खा रहे हैं खूब, लेकिन कैल्शियम की कमी होती जा रही है। एक इंसान बता दीजिए, टेल मी 1 person इन द वर्ल्ड बाय टेकिंग इन कैल्शियम, इसकी हड्डियां मजबूत हो गई, ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो गया। गिव मी वन एग्जांपल। व्हाट आर वी मिसिंग? हाँ, पूरा का पूरा मेडिकल साइंस कुछ मिस कर गया, जो कि हमारे पौराणिक ज्ञान परंपरा में था, लेकिन उसको हमने वैल्यू नहीं दिया। हम 3 में बात करते हैं, है ना? 3 में बात करते हैं ना, वात, पित्त, कफ, हम 3 में बात करते हैं। हम कैसे बात करते हैं? ओजस, तेजस, वर्चस, हम 3 में बात करते हैं। हम बात करते हैं त्रिशूल, 3 तरीके के पेन, हम 3 में बात करते हैं। जब तक आप 3 में बात नहीं करेंगे, आप पूरी बात नहीं कर पाएंगे। तो केवल मटेरियल को लेके अगर आप बात करेंगे कि भाई मल्टीविटामिन खा लो हेल्दी हो जाओ, तो आज तक तो कोई हेल्दी नहीं हुआ। मल्टीविटामिन खा के कैंसर के एपिसोड बढ़ गए, कैल्शियम खा के ब्रेस्ट कैंसर का चांस 200% बढ़ जाता है, मालूम है आपको? तो अच्छा, प्रोटीन खाओ खूब, है ना, ये भी खा लो, वो भी, लाल भी खा लो, पीला भी खा लो, हरा भी खा लो, लालच है बस। कोई ये देख नहीं रहा कि आपका वो जो खा रहे हैं वो सही में यूज होगा आपके शरीर में कि नहीं होगा। आदत ऐसी अगर हमने रख ली कि घर में सारा सामान ले आओ मगर इस्तेमाल नहीं हो रहा और उसको कोने कोने में ठूस के रखा हुआ है, तो गंदगी बढ़ेगी बस। तो इस मानसिकता से भी निकलना पड़ेगा, और ये ना सोचें कि आज तक जितना हुआ वो सही हुआ, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है कि जितना ज्ञान हमारे पास में आया उससे इंसानियत की हेल्थ बढ़ी। ऐसा एक भी प्रूफ नहीं आ रहा। हेल्थ खराब हो गई, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। पहले गांवों में बीमारी होती थी, सभी गांव वालों को हो जाती थी, आजकल पूरी दुनिया को हो जाती है।
जिस इन्फेक्शन के बारे में हम बात करते हैं वो भी ठीक नहीं होता, रेजिस्टेंस बढ़ गया, दवाइयां काम नहीं करती शरीर पे। आज एक भी इंसान दुनिया में ऐसा मिलना ढूंढने पे मिलेगा जो कि बिल्कुल उम्र भी हो गई और हेल्थ भी है, बहुत मुश्किल से मिलेगा, दिया लेके ढूंढना पड़ेगा दिन में। तो प्रूफ ही नहीं है कि हम लोग सही रास्ते पे, एक प्रूफ नहीं है। आपको मालूम है पिछले 100 साल में हमने 80% जीवन को पृथ्वी से एक्सटिंक्ट कर दिया, खत्म कर दिया। 80% of plants and animal species has gone extinct from the face of earth. एक जीवन बिल्कुल खत्म क्यों हो जाए? Why a life will get extinct? क्यों चला जाएगा? क्योंकि रिस्क बढ़ गया उसकी लाइफ पे, तभी जाएगा। हाँ या ना? Yes or no? If we increase the risk, then only a life will go off. तो एक अंदाजा के हिसाब से अगर आपको बताऊं, just for as an example, I'm taking it, not an accurate picture, but अंदाजा लगाते हैं कि what kind of risk we would have increased in the last 100 years. We have increased the risk by a proportion, by an amount of 8,000%. 8,000% रिस्क हमने बढ़ा दिया। Tell me one thing more. Have we increased the risk mitigating capacity of this body? क्या हमने रिस्क बढ़ाया तो रिस्क झेलने की क्षमता बढ़ाई अपनी? क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मिटिगेटिंग रिस्क, द कैपेसिटी ऑफ मिटिगेटिंग रिस्क। एलोपैथी में इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दे हैव अ वेरी वेग कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी। एलोपैथी केवल इम्यूनिटी की बात करता है और वो बहुत छोटा पक्ष है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ दिस रिस्क मिटिगेटिंग कैपेसिटी इन आयुर्वेद। आयुर्वेद में ये कॉन्सेप्ट है, एंड दैट इज नोन एज व्याधि क्षमत्वम और व्याधि क्षमत्व। क्षमत्व कहां से आया? वेयर हैज दिस क्षमत्व? क्षमत्व मीन्स क्षमता, कैपेसिटी। व्याधि मीन्स डिविएशन। So, to bear the deviation, that kind of capacity, किसी भी व्याधि को, परेशानी को झेलने की क्षमता। तो अगर हमने रिस्क बढ़ा दिया तो रिस्क को झेलने की क्षमता तो बढ़ाना चाहिए ना। इतने ज्ञानी होने के बाद भी हमने ये काम नहीं किया, क्योंकि हम ज्ञानी थे ही नहीं। We were never intelligent. So, आज मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से शुरू किया, सिंपल तरीके से आई टॉक अबाउट व्याधि क्षमत्व। तो व्हेन यू ईट समथिंग, जब आप कुछ लेते हैं, द बॉडी हैज अ कैपेसिटी टू यूटिलाइज इट। उसकी एक क्षमता होती है उसको इस्तेमाल करने की। अगर इफ द बॉडी यूजेस दैट मटीरियल और श्लेष्मा टू इंक्रीज लाइफ सस्टेनिंग एस्पेक्ट, जीवन को निर्वाह करने की चीजों को बढ़ाने में अगर शरीर को उसको इस्तेमाल करता है तो उसे शुद्धि कहते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दैट वी डोंट हैव एक्यूरेट ट्रांसलेशन ऑफ थिंग्स, सो डोंट टेक थिंग्स एंड ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। शुद्धि इज नॉट प्यूरिफिकेशन। तो तीन चीजें देखिए, तीन चीजें। अधि, अधि से शुरू। समाधि, you must have heard this word, samadhi. The second word is shuddhi, and the third word is vyadhi. ठीक है? सम अधि, शुभ अधि। शुभ अधि इज शुद्धि, और व्यधि अधि, व्यधि इज व्याधि। शुद्धि का ऑपोजिट व्याधि होता है, व्याधि का ऑपोजिट शुद्धि होता है। राइट? सो संस्कृत, व्हेन यू से संस्कृत वर्ड्स, प्लीज डोंट ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश। इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ना तो उसका मीनिंग खत्म हो जाएगा।
तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप किसी का सही तरीके से इस्तेमाल, इफ यू आर एबल टू यूज समथिंग टू सस्टेन लाइफ प्रॉपरली, दैट इज कॉल्ड एज शुद्धि. उसको शुद्धि कहा जाता है. सो व्हेन यू अप्लाई द राइट काइंड ऑफ टेम्परेचर and the right kind of pressure, water and rava becomes upama. That is called as shuddhi. समझ में आया? बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तब सोल्यूशन मिलेगा. देखिए, ज्ञान तो आप बहुत सारा यूट्यूब और गूगल में देख लेंगे, मगर सोल्यूशन तो नहीं मिल रहा ना. इंसान हेल्दी तो नहीं हो रहा ना, तो कितना भी ज्ञान कर लो, हेल्दी नहीं हुआ तो ज्ञान बेकार का. अगर उपमा नहीं बना तो वो ज्ञान बेकार का. Right? So, what is Shuddhi? Shuddhi, when you use something for enhancing life, जीवन को बढ़ाने के लिए जब कोई चीज इस्तेमाल होती है तब उसे शुद्धि कहते हैं. नहीं तो जीवन को कम करने के लिए होता है, डिविएशन होता है, तो उसे व्याधि कहते हैं, डिजीज कहते हैं. तो डिजीज कैसे होगा? डिजीज कैसे होगा? जब आपकी कैपेसिटी नहीं होगी यूटिलाइज करने की. इफ यू आर capacity to utilize material is not there, then you are in a disease. हाँ, simple. आगे चलते हैं. Then who should be able to utilize things properly in the body? Everybody ना, हर एक को चाहिए कि नहीं चाहिए? तो और कौन कौन को चाहिए? Suppose you have got into a disease episode. आपको बड़ा गहरा इंफेक्शन लगा और आप रिकवर कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा चाहिए नहीं है श्लेष्म शुद्धि. राइट? सो यू हैव गॉन थ्रू एन ऑपरेशन, सर्जरी हुआ, ऑपरेशन हुआ या इंजरी हुआ, तो आपको श्लेष्म शुद्धि चाहिए, व्याधि क्षमत्व चाहिए. रिहैबिलिटेशन के लिए आपको व्याधि क्षमत्व चाहिए. ये प्रोग्राम चाहिए. रिहैबिलिटेशन करना चाहते हैं, ये प्रोग्राम से. और डी एडिक्शन करना चाहते हैं, यू वांट टू कम आउट ऑफ सम काइंड ऑफ एडिक्शन, यू नीड व्याधि क्षमत्व और श्लेष्म शुद्धि. उस समय भी आपको चाहिए. डिटॉक्स करना चाहते हैं अपनी बॉडी का, बॉडी को प्रिपेयर करना चाहते हैं, स्ट्रेंथनिंग करना चाहते हैं, तो आपको क्या चाहिए? श्लेष्म शुद्धि और व्याधि क्षमत्व. So, scope of this program is big. It's a bigger umbrella, and weight management is one important part of it. Weight management इसका एक बहुत important part है. अच्छा, और दूसरी चीज इसके बाद में और थोड़ी सी बात करते हैं. Then we'll talk about how we go about doing it. इसको हम कैसे करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं. If we are saying we have increased the risk of this human body or any kind of life. लाइफ पे हमने रिस्क बढ़ा दिया. इसका मतलब क्या है? What does it mean? Right? So, naturally, there is a balance of many things with material, pressure, temperature, which creates life. है ना? वातावरण में भी टेम्परेचर, प्रेशर मेंटेन है एक तरीके से, तो एक तरीके की लाइफ हो रही है वहां पे. ऐसा है ना? इफ वी डिविएट दिस बैलेंस, अगर इस बैलेंस को थोड़ा बहुत डिविएट करते हैं हम, देन वी क्रिएट रिस्क. सो हैव वी polluted the environment? क्या environment pollute कर दिया हमने? So we have created risk on us. अपने ऊपर रिस्क कर दिया, क्रिएट किया कि नहीं? So have we changed the composition, the resources of this environment? इसमें से पानी आप देखो आसपास में, just look around. How many places where you find ponds, rivers, lake, ताल, तालाब, सरोवर कहां गए हमारे? नहीं है. जमीन के नीचे पानी कहां है? From 50 feet to 5,000 feet down. दूर चला गया पानी, है ना? जो जिस तरीके के जीव जंतु होने चाहिए हमारे आसपास वो नहीं है. हमारे शरीर को हवा लगनी चाहिए, नहीं, हमने बंद कर दिया उसको. कंडीशनड एनवायरमेंट में रहते हैं. सो वी हैव क्रिएटेड रिस्क बाय चेंजिंग द एनवायरमेंट और कंडीशनिंग, क्रिएटिंग कंडीशंस इन द एनवायरमेंट. एक रिस्क, पहला रिस्क हमने ये किया. द सेकेंड रिस्क इन द बॉडी, शरीर के अंदर रिस्क किया. So your body is designed for utilizing natural food. भोजन को इस्तेमाल करने के लिए आपका शरीर बना हुआ है. All the chemical composition in the body, बॉडी के अंदर जो कुछ भी हार्मोन्स, एंजाइम्स, है ना,
एंड और जितने फंक्शन होते हैं इसके, जितने भी केमिकल कंपोजिशन है, वो सब किस चीज के लिए? फूड को यूटिलाइज करने, टू यूटिलाइज फूड, इजंट इट? भोजन को इस्तेमाल करने के लिए है कि नहीं है? सपोज कीजिए आप इसके अंदर भोजन के अलावा कुछ और डाल देते हैं, यू पुट समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम फूड, विल यू क्रिएट रिस्क? क्या आप रिस्क बढ़ा देंगे? आप एक दवाई खा लेते हो, केमिकल दवाई, तो क्या आप रिस्क बढ़ाएंगे कि नहीं इस शरीर के अंदर? द मोमेंट यू पुट समथिंग विच इज नॉट योर फूड, जब भी कोई चीज आप इस शरीर में डालते हैं जो भोजन नहीं है, आप गड़बड़ करते हैं ना, आप ये रिस्क बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और वो वेट के साथ में रिलेटेड हुए एग्जांपल देंगे। है ना, विल यूज एडिपोस or fat as an example. So fat also takes care of what you also call as cholesterol. Cholesterol जिसे हम जानते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सब चीजें जो डालते हैं हम. Do you know cholesterol is an important part of your immune system. इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोलेस्ट्रॉल सबसे बढ़िया चीज है. अच्छा, आपको ये मालूम होना चाहिए कि योर ब्रेन, योर बॉडी एंड ब्रेन, स्पेशली योर ब्रेन डजंट ट्रस्ट यू, ये आपको भरोसा नहीं करता, और ये अपना कोलेस्ट्रॉल खुद बनाता है. अच्छा, 90% ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इज मेड बाय योर बॉडी. कोलेस्ट्रॉल बाहर से आप देंगे ना तो शरीर नहीं लेगा, वो अपना बनाएगा. तो बाहर से आप जो उसको कह रहे हैं फैट दे रहे हो, वो उसको ऐसे इस्तेमाल नहीं करता, हमेशा बनाता है. और ब्रेन इज मेजरली कोलेस्ट्रॉल. अच्छा, रिस्क आपके शरीर में जब भी बॉडी को कम करना होगा तो वो एक हार्मोन बनाएगा, उसका नाम है कॉर्टिसोल. और वो कहां से बनाएगा? व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कॉर्टिसोल? इट इज कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड. सो जब भी रिस्क बढ़ाएंगे आप, तो आपका बॉडी कॉर्टिसोल ज्यादा बनाएगा. यस और नो? योर बॉडी इज ए लिविंग एंटिटी. जब भी आप शरीर का रिस्क बनाएंगे तो वो रिस्क को कम करने के लिए कॉर्टिसोल बनाएगा. तो क्या बढ़ाएगा वो अपने शरीर में? कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा. तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना गलत है या अच्छा है? अच्छा है. गलत कैसे हो सकता है? अगर आप कोलेस्ट्रॉल कम कर देंगे तो आप शरीर को रिस्क ठीक नहीं करने देंगे, रिस्क को मिटिगेट नहीं करने देंगे. दैट इज क्रिमिनल. So first of all, if you reduce the risk, the body will not make cholesterol. Yes or no? But if you increase the risk and do not allow the body to increase cholesterol, you are doing a crime upon your body. आप criminal activity कर रहे हो. Now, giving more example around it. थोड़ा और example दूं कि हम कैसे एक criminal activity कर रहे हैं human body को लेके. So how does your body mitigate infection? Infection को कैसे ठीक करता है आपका शरीर? Many of you might have got into corona, yes or no? Or some kind of viral infection you must have got into. है ना? Viral infection तो हुआ होगा सबको. What is the first thing that happens in your body? What is the first thing that happens in your body? Fever? Temperature rise? Yes or no? Fever होता है ना? So किसी भी इंफेक्शन को खत्म करने का तरीका क्या है बॉडी का? व्हाट इज द वे ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी टू मिटिगेट इंफेक्शन? टेम्परेचर, राइज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाना. मगर आप नहीं बढ़ने देते ना. आप क्या करते हैं? यू टेक इन अ डोलो, क्रोसिन, पैरासिटामोल. आप बढ़ने नहीं देंगे. आप इसको कहेंगे नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा काम नहीं है, यू डोंट टेक केयर ऑफ द इंफेक्शन, वी विल टेक केयर ऑफ द इंफेक्शन. आप नहीं बढ़ने देते ना. दिस इज, देखिए हम क्रिमिनल काम कैसे कैसे कर रहे हैं. हाउ वी आर डूइंग क्रिमिनल एक्टिविटी ऑन दिस बॉडी, राइट? सो नाउ सेकेंड थिंग, उल्टी होता है तो फिर उल्टी बंद कर देंगे, है ना? दस्त होगा तो दस्त बंद कर देंगे. कोई भी काम इस शरीर को नहीं करने देंगे. So how will this body mitigate the risk? उस रिस्क को कम कैसे करेगा जब आप इसे करने नहीं देंगे? तो
सो व्हाट विल इट डू? ये क्या करेगा? जो आप नहीं कर सकते उस तरफ में अपना रिस्क मिटिगेट करेगा. इंक्रीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीज ऑफ फैट, इंक्रीज ऑफ ट्राइग्लिसराइड, इंक्रीज ऑफ एडिपोज टिश्यू. वो अपना भोजन कलेक्ट करने लग जाता है कि बे जरूरत पड़ गई तो. ठीक है, जरा ध्यान से सुनिए. आप लोगों ने, यू मस्ट हैव थॉट ऑफ दिस इन अ डिफरेंट टर्म. मैं आपको बिल्कुल अलग रास्ता दिखा रहा हूं, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये कहां जा रहे हैं. सो प्लीज होल्ड फॉर सम टाइम. आई विल टेल यू आप क्या कर रहे हैं इसके साथ में और क्यों वेट बढ़ रहा है और ऐसे कैसे आसानी से कम हो जाएगा. हाउ विल यू रिड्यूस इट, ये भी मैं आपको बताऊंगा और बहुत तरीके से कैसे हो जाएगा. एंड अ लिटिल बिट अबाउट द प्रोग्राम ऑल्सो. So when you do not allow this body to do something, the risk of this body increases. Yes or no? अगर आप शरीर को कोई काम नहीं करने देना चाहेंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा ना, इसका रिस्क बढ़ जाएगा. Then what will it do? It will go into a survival mode. ये सर्वाइवल मोड में अपने को जिंदा रखने की कोशिश में और आगे जाएगा. सो वो सर्वाइवल के लिए, व्हाट इज द सर्वाइवल मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी? सो देयर इज अ कोर. एक दो चीजें हैं आपके शरीर के अंदर. सर्वाइवल का जो काम करता है ना, वो काम करता है, इसे कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड. ठीक है ना, एड्रीनल ग्लैंड. आपके किडनी के ऊपर दो छोटे ग्लैंड है, ये सर्वाइवल का काम करते हैं. ये क्या रिलीज करते हैं? ये स्टीरॉइड्स निकालते हैं. ठीक है, ये स्टीरॉइड्स निकालते हैं. अब देखो, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं ताकि पता चले कि व्हाई वी आर नॉट एबल टू मैनेज डिजीज. हम डिजीज कोई भी तरीके का क्यों मैनेज नहीं कर पा रहे. तो देयर इज अ हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस. आपका पीछे का मगज है ना, छोटा छोटा पीछे हाइंड ब्रेन, छोटा ब्रेन है, और जो रीढ़ की हड्डी है उसके ऊपर का हिस्सा, वहां पे हाइपोथैलेमस एक जगह होती है. ये ना आपके पूरे शरीर को का सीईओ है, एक तरीके से मैनेजर है, हेड है. यही बताता है कि क्या करना चाहिए शरीर में, क्या नहीं करना चाहिए, यह बताता है. तो जब आप रिस्क बढ़ा देते हैं अपने शरीर का तो एड्रिनल ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ जाती है. इसे कहते हैं एड्रिनल ओवर एक्टिविटी. एड्रिनल ओवर एक्टिविटी शुरू होता है आपके शरीर में. ठीक है, अब ये एड्रिनल ओवर एक्टिविटी कई तरीके से होता है. जैसे कि आपने दर्द के लिए दवाई खाई होगी ना, तो वो दवाई दो तरीके की होती है. एक को कहते हैं NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, और दूसरे को कहते हैं स्टीरॉइड्स. ये दो तरीके की चीजें आपको खिलाई जाती है. जब भी कोई चीज हाथ से बाहर हो जाता है, आपको दर्द की दवाई सबने खाया होगा ना, दे आर उनको प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर कहते हैं. और दूसरा स्टेरॉइड. जब हाथ से काम निकल जाता है तो आजकल हर चीज में स्टेरॉइड दिया जाता है. ठीक है, ये दो चीजें जब भी आप बाहर से देंगे तो आपका एड्रिनल एक्टिविटी गड़बड़ होता है, यानी रिस्क झेलने की क्षमता शरीर की खराब हो जाती है. पहली बात क्या बताया आपको कि जब आप छेड़छाड़ करेंगे शरीर के बैलेंस के साथ में, कोई केमिकल डालेंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा, कभी रोकेंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा. दूसरी बात क्या बताया, जो रिस्क को ठीक करने का मैकेनिज्म है शरीर का, उसको भी काम नहीं करने देते, उसकी क्षमता भी ठीक नहीं है. तो क्या होगा, एड्रिनल ओवर एक्टिविटी होगी. अब ये चीज आप हर जगह पे देख सकते हो कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, क्रॉनिक डिजीज बढ़ रहा है. यानी इन्फेक्शन वाली बात हम साइड में रखते हैं. अब क्या बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रही है. अब क्या बढ़ रहा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बढ़ रहा है, थायराइड इज इंक्रीजिंग, कैंसर बढ़ रहा है जिसका कोई इलाज ही नहीं है. तो हमने इसी को कहते हैं कि अगर रिस्क बढ़ाया और रिस्क झेलने की कैपेसिटी नहीं बढ़ाई तो सारी दुनिया बीमार पड़ेगी. और आप देख लीजिए, केवल टाइम की बात है. आज कोई बीमार नहीं है तो कल को होने ही वाले हैं. तो आपने एनवायरमेंटल रिस्क बढ़ा दिया, इंटरनल रिस्क बढ़ा दिया बॉडी का, ये दोनों बढ़ा दिया. अब इसको काम नहीं करने दे रहे तो आप केवल वेट कीजिए, आपको मल्टीपल डिजीज होने वाला. ठीक है, आप केवल वेट करना और कुछ नहीं करना.
अभी देखेंगे ये एक डिजीज, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरीके से आगे चलेगा ना। बॉडी एक और काम कर रहा है रिस्क को मिटिगेट करने का, कि वो सोच रहा है बाकी तो ये काम करने नहीं दे रहे, तो क्यों ना अपना भोजन मटेरियल तो इकट्ठा कर लो ताकि कभी काम करने दे तो मैं उसको इस्तेमाल कर सकूं। वही फैट है आपके शरीर का। वही फैटी लिवर के बारे में एक और बात बता देता हूं कि व्हेन यू पुट इन अ केमिकल इन योर बॉडी इट क्रिएट्स इन्फ्लेमेशन। केमिकल ही अपने आप में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। यानी कि अगर आप स्किन पे थोड़ा सा केमिकल डाल दो तो जलन होगी ना, दैट इज इन्फ्लेमेशन। तो आपके लिवर में जब ये जाता है तो उसको भी इन्फ्लेमेशन होता है। थोड़ा फैट लगा दीजिए, पुट अ लिटिल फैट, लिटिल घी, इन्फ्लेमेशन विल गो डाउन। इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, जलन कम हो जाएगी। तो लिवर भी तो बेचारा फैट इकट्ठा करके इन्फ्लेमेशन कम कर रहा है, आप वो भी नहीं करने देंगे। यू विल टेक सम काइंड ऑफ अ स्टैटिन। तो प्लीज देखिए, मैं आपको केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूं द काइंड ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज दैट वी आर डूइंग अपॉन दिस बॉडी। और ये बॉडी फिर केवल अपने को बचाने के लिए फैट एक्यूमुलेशन, एडिपोज, इंक्रीज ऑफ एडिपोसाइट्स, इंक्रीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीज ऑफ ट्राइग्लिसराइड, केवल यही कर पा रहा है। ठीक है, अब उसको दूसरा ट्विस्ट देते हैं। थोड़ा सा बताया मैंने, ये बहुत डायर, बहुत खराब सिचुएशन है। इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो ये आप समझें कि वी आर मिसिंग लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट वन और टू थिंग्स। वी आर मिसिंग लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर करंट अप्रोच टू हेल्थ एंड डिजीज। जो अभी हमारा हेल्थ और डिजीज के लिए अप्रोच है ना, उसमें बहुत सारे मिसिंग पार्ट्स हैं और ये सारी दुनिया बीमार हो जाएगी अगर आज हमने अपना पर्सपेक्टिव नहीं बदला तो। सो लेट्स गेट बैक टू वेयर आई स्टार्टेड विथ। मैंने शुरुआत कहां से किया था? श्लेष्म शुद्धि, appropriate use of whatever you put in your body and appropriate use of whatever is there in the body as a stock, as a reserve। हाँ, इसको कैसे हम देख सकते हैं, इसको कैसे हम ठीक करें। अच्छा, इसके पहले एक और चीज मैं बता दूं। Should I tell you one more thing? How do you mitigate the risk? अपने शरीर पे कोई रिस्क अगर आपको आता है तो हाउ डू यू मिटिगेट द रिस्क? कैसे आप उस रिस्क से बचाते हैं अपने आप को? जरा एक्सपेरिमेंट करें, करके देखें। आप ये एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर कर सकते हैं। टेल समबडी टू हिट यू हार्ड। किसी को बोलिए कि आपको थोड़ा जोर से मारे, मुक्का मारे, तो आपको वो मुक्का जो है, वो जो हिट लगेगा आपको, दैट इज अ रिस्क। वो रिस्क है ना। सो हाउ डू यू, व्हाट डू यू डू टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम इट? उससे बचने के लिए आप करते क्या? क्या आप अपने शरीर को टाइट कर लेते हैं? डू यू टेंस योर बॉडी टू मिटिगेट द रिस्क? क्या आप टाइट कर लेते हैं उससे बचने के लिए? और टाइट करने के लिए आप क्या करना? व्हाट डू यू डू टू टेंस योर बॉडी? यू होल्ड योर ब्रेथ एंड टेंस योर बॉडी, यस और नो? आप सांस रोक के टाइट कर लेते हैं अपने शरीर को ताकि आपको वो जो चोट है वो कम लगे, हाँ या ना? तो हाउ डू यू मिटिगेट द एक्सटर्नल रिस्क? बाय होल्डिंग द ब्रेथ। एक और एग्जांपल लें, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सो यू आर वॉचिंग अ हॉरर मूवी। आप एक बहुत डरावनी सी मूवी देख रहे हैं एंड सडनली अ वेरी हॉरर सीन इज अबाउट टू कम। एक ना बहुत खतरनाक सीन आने वाला है, आपको पता, अंदाजा लग जाता है। व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हैं? आपकी सांस रुकती है, आप सांस रोक लेते हैं और देखते नहीं वहां पे, ऐसे आंख के आगे हाथ रख के सांस रोक लेते हैं, यस और नो? यस और नो? अच्छा, और एक एग्जांपल लेते हैं। आई कीप ऑन गिविंग यू एग्जांपल्स, लेट्स डू सम एक्सपेरिमेंट। आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, ये ना सोचें कि जो कहीं जाके जिसने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है वो समझदार नहीं। पढ़े लिखे लोग इतने समझदार नहीं होते। दिस इज अ रिसर्च ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। 25 साल की एजुकेशन में 70% इंटेलिजेंस खत्म हो जाता है। तो आप लोग ज्यादा समझदार हैं, ठीक है ना? तो और एग्जांपल लेते हैं। यू मस्ट हैव टेकन सम इंजेक्शन। इंजेक्शन लिया होगा कभी ना कभी, इंजेक्शन लगा है ना आपको, और आप देख रहे हैं और वो डॉक्टर इंजेक्शन देने वाला है और फिर वो मतलब सुई अंदर जाने वाली है। उस समय क्या होता है? व्हाट हैपेंस? व्हाट हैपेंस? सांस रोक लेते हैं। ये आपने शायद ऑब्जर्व नहीं किया होगा, मगर आप देखेंगे कि आप सांस रोक लेते हैं। यू होल्ड योर ब्रेथ, यस और नो?
यू होल्ड योर ब्रेथ, है ना? घबरा गए, बहुत घबरा जाते हैं कभी, हाँ, एंजाइटी हैपन्स, डू यू नो योर ब्रेथ गेट्स हेल्ड, सांस रुकती है। बहुत खतरनाक न्यूज सुना आपने, कहीं से बहुत खराब समाचार आ गया, आपकी सांस रुकने लग जाती है। आप रोते हैं जब, उस समय आपका गला भर जाता है, आपकी सांस रुकने लग जाती है। इतने सारे इंसिडेंट्स, रिस्क मिटिगेटिंग इंसिडेंट्स आपने देखे अपने लाइफ में, यू हैव सीन इन लाइफ। हाउ डू यू मिटिगेट दैट रिस्क? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ एवरी टाइम इट हैपेंस, यस और नो? अगर गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, एक व्हीकल में अगर ट्रैवल कर रहे हैं खड़े होके बस में, और आपने एक रॉड पकड़ रखा है, खंबा पकड़ के रखा है, और वो ऊबड़ खाबड़ जगह से जाती है, तो आपका होल्ड टाइट हो जाता है कि नहीं हो जाता? होल्ड टाइट होता है कि नहीं होता? पकड़ लेते हैं ना, जोर से पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते? अगर आप एक टू व्हीलर में ट्रैवल कर रहे हैं, पीछे यू आर सिटिंग एट द बैक एंड देयर इज अ लिटिल हेयर इन देयर, यू होल्ड द पर्सन टाइट और नॉट, अब टाइट पकड़ लेते हैं ना। एक्चुअली आप देखेंगे तो टाइट पकड़ने के लिए आप सांस रोक लेते हैं, ठीक है ना? यू होल्ड योर सेल्फ टाइट। तो एक तरीका ये जानने के लिए कि आपका व्याधि क्षमत्व, रिस्क को झेलने की कैपेसिटी कितनी है, एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं। वन वे टू नो कि आपके शरीर में फैट यूज होगा कि नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। If there is excessive fat in your body or not, what will it, how will you check कि आपका अपना फैट को यूटिलाइज करने की कैपेसिटी कम है कि ज्यादा है? आप अपनी पकड़ को देखें। इफ यू आर एबल टू टेंस योर बॉडी अ लॉट, अगर अपने शरीर को टाइट कर सकते हैं, अगर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, तो आपका झेलने की क्षमता भी बहुत अच्छी है, आपकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी है। द स्ट्रेंथ ऑफ होल्ड ऑन योर बॉडी इज एन इंडिकेटर ऑफ योर इम्यूनिटी, इज एन इंडिकेटर ऑफ अ लार्जर स्कोप, आई एम सेइंग व्याधि क्षमत्व। ये अगर आप बढ़ाते हैं, इफ यू इंक्रीज व्याधि क्षमत्व, you will do Shleshma Shuddhi, you will increase immunity, you will increase the fundamental strength of your body, you will increase the organ function of your body and the organ strength of your body, you will increase the homeostasis of your body. अब एक नया वर्ड बोल दिया, homeostasis. Homeostasis, because of homeostasis there is everything in balance in your body. तीन चीजों को होम्योस्टैसिस चाहिए आपके बॉडी के अंदर, तीन चीजों का बैलेंस चाहिए, ठीक है? केमिकल होम्योस्टैसिस, ऑस्मोटिक होम्योस्टैसिस एंड थर्मो होम्योस्टैसिस। तीन चीज बताया। देखिए ये अंग्रेजी बोलने से कोई समझदार नहीं हो जाता। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन अ डिफरेंट मैनर, प्रेशर, टेम्परेचर एंड मटीरियल, कफ, पित्त, वात, ओजस, तेजस, वर्चस, यही बताया मैंने। तो ये तीनों का ही बैलेंस आपको लाना पड़ेगा, तभी व्याधि क्षमत्व बढ़ेगा। यही तीन चीजों का होम्योस्टैसिस बैलेंस लाएंगे, तभी आपका इम्यूनिटी भी बढ़ेगा, तभी आपका फैट का रिडक्शन भी होगा, डिजीज का रिकवरी भी होगा, स्ट्रेंथ गेन भी होगा, एंटी एजिंग भी होगी, एंटी एजिंग भी होगी। Now, I have just told you one way to check. There are other ways to check. I have told you only one way. पकड़ मैंने बोला ना, केवल एक ही तरीका है पकड़। मेंटली किसी को इश्यू भी होगा तो भी उसकी पकड़ ज्यादा होती है। समझिए, आप एक ही चीज पे निर्भर ना करें। आई एम जस्ट टेलिंग यू जस्ट वन थिंग, इफ देर इज अ मेंटल इश्यू पेशेंट, अगर उसकी पकड़ ज्यादा हो तो दैट इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ व्याधि क्षमता। तो ये बैलेंस आपको करके चलना पड़ेगा। अच्छा,
इसको कैसे बढ़ा सकते हैं? हाउ कैन वी इंक्रीज? एक तरीका मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता जा रहा हूं कि एक्सटर्नली यू सी यू होल्ड योर ब्रेथ टू मिटिगेट रिस्क। आप किसी भी तरीके का एक्सटर्नल रिस्क मिटिगेट करते हैं तो आपकी ब्रेथ होल्ड करते हैं, यानी अगर इफ यू इंक्रीज द ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी you will see you will mitigate risk very easily and the fat proportion आपके शरीर में फैट की जो क्वांटिटी है वो यूज होने लग, उसकी शुद्धिकरण होने लग जाएगा, यूज होने लग जाएगा। अनदर एग्जांपल, इसी को मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इफ यू होल्ड योर ब्रेथ फॉर सम टाइम अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, से एग्जांपल 15 मिनट्स, 15 मिनट तक आपने बीच बीच में सांस को रोकते 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 ऐसे किया, देन व्हाट विल सी, इमीडिएटली व्हाट विल सी, इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी। आपको पसीना आ जाएगा विदाउट डूइंग एक्सरसाइज। सो एज आई सेड, थर्मो रेगुलेशन और टेम्परेचर बॉडी का आपको बढ़ाना पड़ेगा टू यूटिलाइज फैट। यस और नो? उसके लिए आप एक एक्सरसाइज करते हैं ना, खूब जोर लगा के एक्सरसाइज करते हैं तो फिर थोड़ा फैट कम होता है, मगर मैं तो आपको बैठ के ही फैट यूटिलाइज करने का तरीका बता रहा हूं विदाउट डूइंग एनी एक्सरसाइज। By just doing Kumbhak, you increase the thermoregulation factor और thermoregulative index of your body। शरीर में टेम्परेचर बढ़ाने की क्षमता आपकी जैसे ही बढ़ती है आपका फैट कम होना शुरू हो जाएगा। Anybody who does Kumbhak for a certain period of time till the Vyadik Shamatva has increased cannot gain weight, can never gain weight। I was more than 107 kgs, मैं 107 किलो से भी ज्यादा था। तो पहली चीज, इफ योर बॉडी टेम्परेचर, इफ योर टेम्परेचर रेगुलेशन मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी इज हाई, यू कैनॉट हैव एक्सेसिव फैट इन योर बॉडी, इट विल गेट यूटिलाइज्ड, उसका इस्तेमाल हो जाएगा। तो आपको कुंभक कैपेसिटी बढ़ाने से थर्मो रेगुलेशन भी होता है। सेकेंड थिंग, अपार्ट फ्रॉम दिस, you know, for transportation of fat or any material in the body, there is a certain osmotic pressure which is needed। आजकल उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। There is nothing called as blood pressure। ब्लड प्रेशर जैसी चीज कुछ भी नहीं होती और किसी को भी मालूम नहीं है कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, नहीं तो वो ठीक कर देते, पर हम लोग ठीक कर देते हैं ब्लड प्रेशर। हाउ? बाय कुंभक। अपने शरीर के अंदर आप प्रेशर कैसे बढ़ाएंगे? सो आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल। उल्टी किया होगा सबने, यू मस्ट हैव प्यूक्ड, उल्टी किया होगा सबने, कभी ना कभी तो किया होगा। उल्टी करने से पहले क्या होता? व्हाट हैपेंस? फॉर थ्रोइंग आउट यू नीड अ सर्टेन प्रेशर इन द बॉडी, बॉडी के अंदर प्रेशर चाहिए, एंड बॉडी होल्ड्स ब्रेथ, सांस रुकती है वो प्रेशर बनाने के लिए, एंड देन यू प्यूक आउट, फिर उल्टी होती है आपके। छींक मारी है किसी ने? हैव यू स्नीज? छींक मारा है? क्या छींक मारने से पहले सांस रुकती है? डू यू होल्ड योर ब्रेथ बिफोर? देखिए, ऑब्जर्व ही नहीं किया आपने। इतनी सारी चीजें कर रहे हैं और आपको लगता है कि किसी किताब को पढ़ के आपको ज्ञान मिल जाएगा, गूगल में मिल जाएगा, यूट्यूब में मिल जाएगा। अरे नहीं, ज्ञान तो यहां पे है। लाइफ इज हैपनिंग हियर, यू मस्ट ऑब्जर्व इट एंड देन ओनली यू विल गेट अ सोल्यूशन। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन हो गया एंड यू वांट अ रिलीफ, है ना? थ्रो बाहर नहीं निकल रहा तो जोर लगाते हैं कि नहीं सांस रोक के? सबने किया होगा कि नहीं किया होगा? वो भी सांस रोक के करते हैं। दैट मीन्स इफ देयर इज समथिंग टू ट्रैवल इनसाइड योर बॉडी, अगर शरीर में कोई चीज ट्रैवल करना है तो आपको एक प्रेशर चाहिए। प्रेशर कम हो जाए ना किसी का, आस्क अ पर्सन हु हैज लो बीपी, वो किसी को पकड़ भी नहीं पाएगा, उसकी पकड़ ही कमजोर हो जाएगी। तो बॉडी में कोई चीज फ्लो कराने के लिए भी प्रेशर चाहिए, और प्रेशर बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? ब्रेथ होल्ड। अंदर बॉडी का प्रेशर बनाए तो ब्रेथ होल्ड करके प्रेशर बना सकते हैं ना? हाँ या ना? और कोई तरीका है क्या? कोई और तरीका नहीं है, कोई और तरीका नहीं है। तो जब हम श्लेष्म शुद्धि कर रहे हैं तो हाउ डू वी डू श्लेष्म शुद्धि? बाय पित्त एंड वात बैलेंस और ओजस वर्धन कह सकते हैं। श्लेष्म शुद्धि को हम क्या कर सकते हैं? ओजस वर्धन।
ओजस वर्धन क्या, अगर आपको लगता है कुछ खा लो तो ओजस वर्धन हो जाएगा, खाने से कोई बीमारी ठीक नहीं होती, और आपको लगेगा भी नहीं, क्योंकि लगने के लिए आपका पित्त और वात पक्ष सही होना चाहिए, तेजस और वर्चस सही होना चाहिए, तब जाके ओजस बनेगा, है ना। आग जलनी चाहिए, प्रेशर होना चाहिए, तब उपमा बनेगा। वापस से घूम फिर के वहीं आ जाइए, आपको समझ में आएगा। तो अपने शरीर का श्लेष्म शुद्धि के लिए क्या करेंगे, यू विल हैव टू रेगुलेट और इंक्रीज द टेम्परेचर इंडेक्स एंड प्रेशर इंडेक्स ऑफ योर बॉडी। आपके प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज, यानी झेलने की क्षमता कैपेसिटी आपकी बढ़नी चाहिए, एंड देन श्लेष्म शुद्धि कैन हैपन, नॉट अदरवाइज। कोई और तरीका नहीं है। Now, because of that, you will see your immunity will increase. Because of that, your organ strength will increase. Because of that, you will be able to recover from disease very fast. Rehabilitation will happen. Anti-aging will happen. Fat तो इस्तेमाल होगा तभी होगा ना ये सब. So, Shleshma Shuddhi, how we are going about doing Shleshma Shuddhi? By using Kumbhak to increase what is called as तेजस एंड वर्चस। दो फैक्टर बताए, श्लेष्म या ओजस को बढ़ाने के लिए कैसे बढ़ा रहे हैं, बाय इंक्रीजिंग द तेजस एंड वर्चस फैक्टर, वी आर इंक्रीजिंग द ओजस फैक्टर, एंड यू विल सी जो भी कुंभक कर रहा है इसको हम क्या कह रहे हैं, त्रिकाग्नि संस्कार। इसको क्या, इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, त्रिकाग्नि संस्कार। सो वी आर टीचिंग यू त्रिकाग्नि कुंभक क्रिया as one part of it. तीन चीजें आपको सिखाएंगे इसमें प्रोग्राम में. The first thing that will teach you is Trikagni Kumbhak Kriya. The second part that will teach you is Sarvanga Hatha Kumbhak, which is directed towards every organ of your body. तो ये ना, ये overall health program है. So it will increase the capacity of your liver, thereby reducing fatty liver, liver cirrhosis, liver के issues को खत्म करेगा, heart को strong करेगा, it will build up confidence, boost up confidence and boost up heart strength, increase what you call as the blood regulation, blood pressure regulation factor of your body. आपके blood pressure को regulate करने के factor को बढ़ाएगा. It will enhance the kidney capacity, kidney की capacity को वो increase करेगा, तभी जो खराब चीजें हैं आपके शरीर से बाहर जाती है। श्लेष्म शुद्धि में जो भी खराब चीजें बनेगी वो थ्रू आउट करने का भी डाइजेशन कैपेसिटी, इट विल इंक्रीज द हंगर इंडेक्स, द राइट हंगर इंडेक्स ऑफ योर बॉडी। सही भूख, अगर आपको खूब भूख लगती है ना, आपको फैट नहीं हो सकता, मालूम है इस बात का? आपके अंदर फैट नहीं हो सकता, खूब भूख लगती है, लेकिन आप भूख लगने ही नहीं देते, वैसे ही खा लेते हैं। टाइम पे खाते हो ना तो बीमारी हो रही है, भूख लगने पे खाएंगे तो बीमारी नहीं होगी। सो हंगर फैक्टर को भी इंक्रीज करेगा, देयर बाय डाइजेस्टिव प्रोसेस, जो डाइजेस्टिंग एनीथिंग विच इज केप्ट एज डॉर्मेंट इन योर बॉडी। कोई फैट अगर डॉर्मेंट है तो उसको डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी आपके, ठीक है ना। तो ऑर्गन की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सर्वांग हठ कुंभक है। एंड द थर्ड थिंग इज इट विल ऑल्सो इंश्योर दैट यू बिकम स्ट्रॉन्ग इन योर बॉडी। जैसे आपका ऑपरेशन हुआ, जैसे आपको न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल डिजीज है, स्पेशली न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल डिजीज, सो एंड देयर इज एन एपिसोड, एक रिस्क एपिसोड आ गया, हॉस्पिटलाइज हो गए, तो वापस आके आप अपने शरीर को वापस से एफिशिएंट एंड स्ट्रॉन्ग कर पाए, उसके लिए करला कटाई का एक बहुत सिंपल प्रोसेस, एनीबडी कैन डू इट। करला कटाई इज अ वेरी वास्ट प्रोसेस, ये बहुत एक साउथ इंडियन मार्शल आर्ट में अभी भी संभाल के रखा है इसको, नॉट इन द राइट फॉर्म, नॉट इन द ओरिजिनल फॉर्म, बट यस इन मेजरली इट हैज बीन केप्ट एज इट इज। तो करला कटाई एक ऐसी चीज है जिससे कि बॉडी का ब्यूटिफिकेशन होता है। योर फैट विल बी यूटिलाइज बट योर प्रोपोर्शन विल कम आउट, आपका प्रोपोर्शन बहुत अच्छा बन जाएगा, यानी आप शरीर से खूब सारा एक्टिविटी काम ले सकते हो। जैसे जवानी में खूब शरीर से काम ले सकते थे ना, अगेन यू कैन यूज योर बॉडी टू डू लॉट ऑफ एग्रेसिव एक्टिविटी। आपका बॉडी का प्रोपोर्शन भी आता है करला कटाई से। एंड देयर इज अ मूवमेंट विद सर्टेन वेट के साथ में एक छोटा सा मूवमेंट आपको सिखाएंगे, वेरी शॉर्ट प्रोसेस,
छोटा सा प्रोसेस है. इफ यू डू इट रेगुलरली इट विल हैव अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन योर फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एंटी एजिंग फैक्टर. एंटी एजिंग भी होता है इससे. ठीक है, 3 चीजें आपको सिखा रहे हैं, बट एवरीथिंग हैज अ बेसिस कोर एज कुंभक. हाँ, ये तीनों चीजें त्रिकाग्नि संस्कार, सर्वांग हठ कुंभक, करला कटाई, तीनों में ही कुंभक बेस है. कुंभक के बगैर हम नहीं कर रहे ये सब, क्योंकि कुंभक के बगैर ये हो नहीं सकता. बाकी जगह करला कटाई को किया जा रहा है नॉट विथ कुंभक. करला कटाई में वेट को इस्तेमाल किया जाता है जस्ट टू डू कुंभक, बट विल यूज प्योरली कुंभक टू डू करला कटाई. दिस इज समथिंग वेरी यूनिक, है ना. तो दुनिया में अपने तरीके के यूनिक प्रोसेस, बिल्कुल इकलौते प्रोसेस, और कोई ऐसा नहीं है. विल टीच यू इन 40 days, 40 दिन के अंदर आपको ये चीजें हम सिखाएंगे. इफ यू डू प्रैक्टिस इट सो यू विल रीप बेनिफिट. लाइक वेट रिडक्शन तो होगा. इफ यू आर डूइंग कुंभक, लेट मी अगेन गारंटी दिस, इफ यू आर डूइंग कुंभक and your Vyadi Kshamatva has increased, which takes approximately 3 to 6 months from people to people. ज्यादा प्रॉब्लम है किसी को, ज्यादा क्रॉनिक डिजीज है, देन इट विल टेक 1 year to 3 year. बट सोचिए, आप अगर 3 साल के अंदर अपने सिचुएशन, द स्टेट ऑफ योर बॉडी बिकम सच कि आपकी बीमारियां सारी ठीक हो जाती हैं और आगे चल के कोई बीमारी नहीं आए आपके. ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इज देयर एनी other way through which you can do this? No, you can't do this through any other way. अच्छा भोजन खाना तो ठीक है, बट फूड विल नॉट इंक्रीज योर व्याधि क्षमत्व. तो आपको क्या वो च्यवनप्राश खा के आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगी? नहीं साहब, ऐसा काम नहीं करता. ऐसी चीजें नहीं होती. थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा इफ यू हैव स्ट्रेंथ इन योर बॉडी. थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, बट इन अ लॉन्ग टर्म, साल भर च्यवनप्राश खाएंगे तो थोड़ी इम्यूनिटी बढ़ेगी. लेकिन व्याधि क्षमत्व बढ़ाएंगे तो 1 हफ्ते में आपकी इम्यूनिटी डबल हो सकती है. So this is a missing part that we must focus upon, and this program is a complete rehabilitation, recovery, rejuvenation program, है ना. तो ये बड़ा स्कोप है इसका. रिहैबिलिटेशन, रिकवरी, रिजुविनेशन. किसी को अगर मेंटल एपिसोड भी है, any kind of mental issues, stress, depression, bipolarity, schizophrenia, those kind of things, अगर ADHD इस तरह की चीजें भी हैं, so you'll see that the moment we increase the Vyadi Kshamatva, the mental issues actually collapse down. वो चीजें एकदम ठीक हो जाती हैं. So the core thing is Vyadi Kshamatva बढ़ा के what we are doing श्लेष्म शुद्धि. श्लेष्म शुद्धि कर रहे हैं, and that is how we will achieve all those results that I have said. ठीक है, तो this is all about अमेदा. और इसको शॉर्ट में हमने क्या बोला? हमने कहा अमेदा, ताकि आप प्रोनाउंस कर पाए. लंबे लंबे वर्ड बोलेंगे तो नहीं प्रोनाउंस कर पाएंगे, मगर व्हाट इज दिस प्रोग्राम? द प्रोग्राम इज अमेदा. किसके लिए जरूरी है? सबके लिए जरूरी है इस वक्त, तो है ना, सबके लिए जरूरी है. बट आप अपने अपनी प्रॉब्लम देखिए और उसके हिसाब से देखिए कि ये आपको, ये कोर थिंग है, ये आपको करना चाहिए. टेक अ डिसीजन. इफ यू टेक अ डिसीजन टुवर्ड्स योर लाइफ, यू विल सी यू कैन गो टुवर्ड्स हेल्थ एंड हैप्पीनेस. सो आई विल स्टॉप हियर. यहां पे मैं रुकूंगा. बाकी द टीम विल टेक यू फॉरवर्ड. So I hope all the participants have got a fair enough insight of Ameda Shleshma Shuddhi Chikitsa. Can I be on spotlight, please? Okay. So let's come to the second part of the webinar, where we will be inviting somebody live who's been a part of Ameda Shleshma Shuddhi Chikitsa. अब आप जान पाएंगे कि उनको क्या क्या benefits हुआ and how you can benefit from this program if you wish to join. So I would like to invite Preeti ma'am. Just a sec. Preeti Sharma ma'am, are you there? Preeti Sharma ma'am,
I put you Yes, on ma'am. spotlight. Yes, ma'am. Yes. Thank you so much for joining us today evening. Can I have your camera Yeah. on, please? My camera is on. Okay, I'm not able to see. Ashwini, are you able to see Preeti ma'am? Yes, Preeti ma'am, you can start your Yeah, conversation. so you should see, right? Now my camera is on, correct? And Okay. am I audible? Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Okay, yeah. So thank you very much to team Ameda, Avisha, and thank you very much to Swamiji. I had just completed the Ameda course, and I would really recommend this. I'm very happy with my tutor also who guided me through the sessions. And what changes I have found in me is I have experienced I have got more energy after doing this, even not just after completing the whole session, after few sessions, after a 1 week, which is like 3 sessions, I found such amazing energy levels in me. And also after, I guess, a session of six sessions, that's 2 weeks, I found loss in inches, which I have not experienced earlier. I've tried different form of yoga and walk and all. However, in with this, in a span of 2 weeks, that is 6 sessions, I started experiencing inch loss. That became a reinforcer for me, and I have attended all the sessions in the morning, and I am really happy with this method of healing and rejuvenation. And as Swamiji said, it is not just a weight loss. It's too small a word. It is like a rejuvenation and regeneration of the whole system. So this is my testimony, and I have a lot of gratitude to Swamiji for coming up with this form of Kumbhak therapy. Thank you so much. Thank you so much, Preeti ma'am, for joining us tonight. I would like to now invite Sneha Habbu ma'am to share her journey of Ameda. Yes, Sneha ma'am. Hello. Yes, Hello, ma'am, we can hear everybody. you. Yes. I started the Ashtang Kumbhak last year on 6th of July. First session that I had done for my BP and diabetes last year. The mentors, Navneet, and the whole team were very supportive, and there were lectures by Swamiji, which were very educative, and a new direction has been given to us, which we had not got from anybody up till now. We were just running behind the medicines, the values, and everything. But Swamiji has opened another chapter in our life, that there is something beyond the values, which we have to look into now. So now, after doing Kumbhak for almost a year, I am feeling almost regenerated. I feel like a teenager from inside. I'm not at all looking at my values. I just get up and do the Kumbhak which has been given to me. I do the preparatory one, never miss the preparatory. After breakfast, lunch, and my dinner, I'm doing the Nak process, and I found the process very, very enjoyable. After that, I joined this Sleshma Shuddhi, which is also a very nice program for weight loss. They have taught us Karla Katai and other things which are ancient methods. And so I stick to these things, and it is something connecting with Mother Earth again. That's what I feel by doing Kumbhak. And I travel a lot. So I have overcome all my traveling issues. Today also I came from Nasik, and I've just come. I've not even changed, and I attended the webinar. So this is the amount of freshness which you get by doing Kumbhak. Thank you so much, Sneha ma'am, for sharing your journey of Ameda.
Now I Yes. would like to share the program details. If I have the participants' permission, how many of us are now more interested to know the program details? Please give me a thumbs up. Can I have a quick thumbs up? Okay, thank you so much. And here we go with the program details. Is the screen visible? Yes, ma'am, it's visible. Okay. So batch 5 starts, date for Ameda Shleshma Shuddhi Chikitsa. 7 p.m. 29 June 2023, Thursday. Just a sec. Okay. I'm so sorry. Ameda Shleshma Shuddhi Chikitsa program details. It's a guided program conducted online on Zoom app by trained Kumbhak mentors. Mind you, ये योगा नहीं है जो आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी सिखा लेता है, कुछ भी गलत सलत होता है, उसका कोई भी हिसाब किताब नहीं लेता. ये हमारे स्वामी जी कुंभक मेंटर्स को ट्रेन करते हैं, तभी वो आपको ऑनलाइन कंडक्ट करते हैं ये गाइडेड प्रोग्राम. So program overview, it's a 6 weeks program, 18 live classes, 3 classes every week, Pran Shakti diagnosis for root cause determination, 1 customization class. So batch 5 start date for Ameda Shleshma Shuddhi Chikitsa, 7 p.m. 29 June 2023, Thursday. So let's see what are the class time and days. Time 7 p.m. class days, Thursday 29 June, Saturday 1st July. Next week onwards, it's Monday, Wednesday, Friday. So let's see what the class experience is going to be like. Live sessions, mentors watch participants. That's why we constantly insist the participants should switch on their video, written instructions, session recordings. What are the extras? Mental practices, unique diet perspective, simple detox, knowledge like no other. So before I share the program details, it's very important to know who this program is not for. It's not for people who are looking for a magic pill and want results tomorrow only. This is not for those who are not ready to work on their body, not for those who cannot invest 60 to 70 minutes every day on themselves, not for those who are impatient, not for those who are looking for a free treatment which is available everywhere. So let's come to the special webinar pricing. Program fee for Ameda program, 9,500. But since you've attended the webinar and you've been staying to know more about it, we will give you a special pricing, 5,500. So let's see how to enroll. Pay the program fee, post the payment receipt in WhatsApp group, submit your details to the Access Force dashboard, join the class WhatsApp group. What do you get? Pran Shakti diagnosis for root cause determination. 3 classes per week, 60 to 70 minutes duration, class recordings, access for 6 months, separate videos of all the kriyas, written instructions, daily support in the class group, customization of kriyas as per the PSD, 30 days of extra support after the program is over. So these are the various payment methods. You have the bank details for transfer, scan, you can scan the QR code. So it's valid till
it is valid till 28th of June 2023, 12:30 p.m. So that is Wednesday. So our support team, Rachna Shimal Botra, that's me, Shalini Bhagwat, Ranjana Swain, Vibha Chorge, Neha Upadhyay, our enrollment expert, Anil Chauhan, our WhatsApp group admin, Himanshu Reddy, our technical expert who works behind the scenes, but doing an extremely important job. Thank you so much for listening to me patiently. Now I would be taking up the questions. Let me see if Swamiji has joined. Swamiji has joined. So we will be taking up the questions one by one. Namaste, Swamiji. Good evening. I will just read out the questions one by one. You all can write in the chat box. Pratima Timaya, is this to be practiced along with Ashtanga Chikitsa? No, it is not to be practiced along with Ashtanga Chikitsa. If you're doing Ashtanga Chikitsa, you'll have to practice it for at least 6 months. Only then, if you want, you can learn this process also. So it has to be done separately. And not to be confused with a second part of Ashtanga Chikitsa. Okay. So Angel ma'am asks, what's Kumbhak? Okay, somebody has asked, if you leave your number here, somebody will get in touch with you. हाँ, अगर आप नंबर छोड़ेंगे ना, कोई आपसे बात करके आपकी प्रॉब्लम को पूछ के उसके बाद सही डायरेक्शन आपको देंगे, ठीक है ना। जो भी इंटरेस्टेड हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्लीज नंबर छोड़िए। व्हाट इज कुंभक? So कुंभक is the basis on which you do any activity. कुंभक वो आधार है, वो मूल तत्व है जिसकी वजह से आप कोई भी काम करते हैं। कुंभक को एक सिंपल तरीके से समझाने का तरीका ये है कि whenever you make an effort, जब भी आप जोर लगाते हैं, किसी भी तरीके का एफर्ट लगाते हैं, तो कैसे लगाते हैं? Suppose you clasp your fingers and pull, खींचिए। So when you make this effort, how do you make this effort? You have to hold your breath. Not only pulling, pushing, lifting any weight. Even if you get up from a chair, what happens? You make a sound. What did you do? You held your breath. So whatever, walking, jogging, yoga, Zumba, aerobics, doing household chore or whatever, whenever you move your body, the fundamental act on which you move your body is Kumbhak. Now similarly, this is true for something which is happening inside you. So when you puke, है ना, उल्टी करते हैं तो पहले सांस रुकती है। ये सब चीजें ऑब्जर्व कीजिए आप। हाँ, जब छींक मारते हैं तो सांस रुकती है, कोई शरीर में से चीज निकालनी है तो सांस रुकती है। अब आपके कॉन्टेक्स्ट में मैं कुंभक को थोड़ा सा और इलाबरेट कर रहा हूं। सो यू नो देयर आर टू काइंड्स ऑफ फैट, दो तरीके के फैट होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल। इंटरनल फैट को हम विसरल फैट भी कहते हैं। तो पतला इंसान होगा, बहुत पतला इंसान होगा, बाहर फैट नहीं है मगर अंदर फैट हो सकता है, वो पता नहीं चलेगा। उसी की वजह से कई प्रॉब्लम्स होती हैं। इनफैक्ट ज्यादातर प्रॉब्लम उसकी वजह से होती है, जैसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज हो गई, थायराइड हो गई, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कोई भी होगा ना, तो विसरल फैट का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है, जो बाहर से नहीं दिखता। अच्छा, बाहर के फैट को अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेस डाल दें, थोड़ी ऐसे ही एक्सरसाइज कर लें, जैसे हम रेजिस्टेंट एक्सरसाइज कह लो, चाहे वेट से हो, एरोबिक्स से हो, चाहे स्विमिंग से हो, या वैसे भी अगर आप स्ट्रेचिंग करेंगे, तो एक्सटर्नल फैट पे इंपैक्ट आएगा, इंटरनल फैट पे इंपैक्ट नहीं आएगा। बाहर की एक्सरसाइज से बाहर का फैट जाएगा, अंदर का फैट नहीं जाएगा, मगर बाहर का फैट भी जाएगा। अगर अंदर फैट है तो बाहर फैट बहुत जल्दी आएगा, तो इसीलिए जैसे ही छोड़ेंगे वापस आ जाए। मगर इंटरनल रेजिस्टेंट एक्सरसाइज अगर आप करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंट एक्सरसाइज करेंगे, तो विसरल फैट जाएगा और बाहर का फैट भी जाएगा, दोनों ही चीज जाएगी।
इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कैसे करेंगे? कोई तरीका है उसका? कुंभक इकलौता तरीका है, एक ही तरीका है जिससे इंटरनल रेजिस्टेंट एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे आपके ऑर्गन मजबूत होंगे, ऑर्गन फंक्शन अच्छे होंगे, इससे आपके बॉडी के अंदर कोई भी फ्लो अच्छा होगा, चाहे वो ब्लड का हो, लिम्फ का हो, टॉक्सिन्स आसानी से निकलेंगे, मेटाबॉलिज्म को आप इंप्रूव कर सकते हैं। कोई गोली से मेटाबॉलिज्म इंप्रूव नहीं कर सकता, मगर कुंभक से आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें कुंभक करके, कुंभक आप रोज करते हैं, ठीक है ना? कुंभक आप, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं करता, आप रोज करते हैं, बस आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, इतनी सी बात है। और किसी उसे प्रिसाइज तरीके से नहीं कर रहे, ताकि एक कुंभक हम किसी ऑर्गन की तरफ में डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें डायबिटीज रिवर्सल, थायराइड रिवर्सल, कैंसर रिवर्सल, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज के लिए है, आस्थमा, एलर्जीज के लिए है, प्रेग्नेंट होने के लिए है, और प्रेगनेंसी में अष्टांग गर्भ संस्कार करके प्रोग्राम है, उसके लिए है, बच्चों के लिए अलग प्रोग्राम। तो बहुत अलग अलग तरीके के प्रोग्राम है। हमारा आयुर्वेदिक रिसर्च का भी काम है, आयुर्वेद पे रिसर्च, कुंभक पे रिसर्च, डायग्नोस्टिक पे हम रिसर्च कर रहे हैं। तो अभी किसी ने पूछा कि इसका कोई प्रूफ है, रिकॉर्डिंग का क्या प्रूफ, मुझे समझ में नहीं आया रिकॉर्डिंग का क्या प्रूफ होगा, बट प्रूफ इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट होता है। जैसे लोगों की डायबिटीज ठीक हो गई, थायराइड ठीक हो गया, वेट लॉस हो गया, नेचुरली वेट लॉस हो गया, दोबारा वेट गेन नहीं करेंगे, है ना, प्रेग्नेंट हो गए, ये सब हमारे पास में रिजल्ट है, जिसमें टेस्ट रिपोर्ट्स भी होते हैं। तो बहुत तरीके के टेस्ट रिपोर्ट्स हमारे। Okay. Swapna Mohanty ma'am says, please demonstrate कुंभक करला कटाई। कुंभक करला कटाई नहीं होगा। करला कटाई दरअसल एक प्रोसेस है जिसमें यू टेक सम वेट एंड डू अ मूवमेंट, ठीक है? उसमें कुंभक को जोड़ा गया। कुंभक वैसे भी उसके अंदर हो ही रहा है, बट अगर कॉन्शियसली हम उसके साथ में कुंभक को जोड़ते हैं, यानी ब्रेथ होल्ड, प्रिसाइज ब्रेथ होल्ड फॉर्मूला जोड़ते हैं उसके साथ में, देन दैट प्रोसेस बिकम्स मोर इफेक्टिव। आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए आप 10 किलो का वेट उठाते हैं, कैसे उठाएंगे? सांस रोकेंगे तभी उठा पाएंगे। एफर्ट तो बिना सांस रोके आप लगा ही नहीं पाएंगे, तो सांस रोक के उठाएंगे। अगर 15 किलो का उठाना है तो आपको ज्यादा सांस रोकनी पड़ेगी। तो आपकी एफर्ट मेकिंग एबिलिटी किससे आती है? सांस रोकने की क्षमता से। अगर आप कम काम कर पा रहे हैं, एक्शन कम कर पा रहे हैं, आपकी बॉडी अगर वीक है, तो इसका मतलब कुंभक वीक है ना आपका, तभी तो आप एक्शन नहीं कर पा रहे। कुंभक को स्ट्रांग करेंगे तो एक्शन कर पाएंगे, वरना एक्शन करेंगे तो हार्ट फेल हो सकता है, किडनी, लिवर, ये ऑर्गन जवाब दे सकते हैं कि नहीं। इसीलिए आजकल जवान लोगों में बहुत जल्दी ये ऑर्गन फेलियर्स हो रहे हैं ना। किडनी कितना फेल हो रहा है, हार्ट कितना फेल हो रहा है, यंगस्टर्स में हो रहा है। तो स्ट्रेंथ फैक्टर अगर नहीं है, उस पर अगर आप ज्यादा जोर लगाएंगे, और दूसरे तरीके से, एक और तरीके से देख सकते हैं, स्ट्रेस फैक्टर्स बढ़ रहे हैं ना दुनिया में। क्यों बढ़ रहे हैं? आदमी तो वही है ना, काम तो और कम कर रहा है, स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि और कमजोर होता जा रहा है बॉडी उसका। बाहर से अगर आप देखें, बाहर की बात नहीं कर रहा, अंदर से कमजोर होता जा रहा है। तो वेट उठाने की क्षमता हमारे लोगों में अभी कम है, स्ट्रेस झेलने की क्षमता कम है। इसका मतलब क्या हुआ? फैट क्यों आ रहा है बॉडी के अंदर? फैट तो प्रोटेक्टिव है, फैट तो प्रोटेक्ट करता है आपको, कोलेस्ट्रॉल तो बचाता है आपको, यानी आप रिस्क में हो। रिस्क है बचाने के लिए फैट या कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड, इस तरीके की चीजें, या फिर जिसे कहते हैं फैटी लिवर हो रहा, रिस्क आ रहा है उसके अंदर, क्योंकि उसकी कार्य क्षमता कमजोर हो रही है। तो रिस्क से बचाने के लिए इम्यूनिटी बढ़ रही है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आप देखो कितना हो रहा है। तो रिस्क अगर आप कम करना चाहते हैं तो अपना टॉलरेंस बढ़ाना पड़ेगा। टॉलरेंस बढ़ाने के लिए आपको सीधे सीधे आपका कुंभक कैपेसिटी आपकी बढ़ानी पड़ेगी। अगर वो बढ़ा देंगे और वो एक पर्टिकुलर तरीके से करेंगे, तो आपके अलग अलग ऑर्गन्स की तरफ में हम उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको जो बताया जा रहा है, क्या वो सही है? अगर सही होता, 100 साल में डायबिटीज कोई ठीक हुआ दवाई खा के? ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज किसी का ठीक हुआ दवाई खा के?
कोई तो ठीक नहीं हुआ, एक केस भी नहीं है थायराइड किसी का ठीक हुआ दवाई खा के। तो हम कहाँ अप्रोच क्या ले रहे हैं? दवाई से ठीक होगा क्या? ये नहीं होता, होता ही नहीं है। प्रूफ है ना, 100 साल का प्रूफ है। आप मुझे 1 साल 2 साल का प्रूफ मत पूछो, पिछले 100 साल का प्रूफ उठाओ, गूगल कर लो, आपको मिल जाएगा। ये कोई इतनी मुश्किल चीज तो नहीं है। आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझदार हैं। आप लोग किस तरफ देखना चाहिए उस तरफ देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो हो क्या रहा है? कैल्शियम खा के किसका ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो गया? बताइए, एक इंसान बता दो पूरी दुनिया में। आप आजकल जो भोजन कर रहे हैं, आपके पूर्वज इतना अच्छा भोजन थोड़ी करते थे। याद है आपको? दादी, दादा दादी, नाना नानी याद है कितना काम करते थे और किस तरीके का भोजन मिलता था? मगर आपको सब भोजन मिल रहा है, आपको सारी डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसी, डी डेफिशिएंसी और ये डेफिशिएंसी, वो सब डेफिशिएंसी। गलती क्या है? हम बॉडी को सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी कार्य क्षमता, वर्किंग कैपेसिटी हम नहीं बढ़ा रहे। इंटरनल वर्किंग कैपेसिटी बढ़ा दीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इंटरनल वर्किंग कैपेसिटी कैसे बढ़ाएंगे? जब इंटरनल कोई काम करे। कुंभक वैसे ही इंटरनल काम है, जिसमें कि हम, एक फैक्टर है ब्रेथ होल्ड टेक्निक, दूसरा है बॉडी को एक पोजीशन में लाके फिर हम ब्रेथ होल्ड करवाते हैं अलग अलग तरीके से। करला कटाई में हम बॉडी में मूवमेंट क्रिएट करते हैं, फिर एक तरीके का ब्रेथ होल्ड फॉर्मूला हम लगाते हैं। Amruta ma'am talks about, will this practice not increase the back pain or spondylitis or shoulder pain or any other problem? So please let's try to think something which is not natural for the trained mind. थोड़ा ऐसा सोचते हैं, आपको समझ में आएगा। सपोज योर लेग्स बिकम वेरी वीक, आपके पांव कमजोर हो गए। सो व्हाट विल बी द एडवाइस? प्लीज व्हील चेयर इस्तेमाल करो। हाँ, प्लीज व्हील चेयर इस्तेमाल करो। आपको लगता है व्हील चेयर जो प्रिस्क्रिप्शन दिया गया वो ट्रीटमेंट है आपका? व्हील चेयर इस्तेमाल करने से आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा? आप ट्राई करके देख लो, 2 साल तक व्हील चेयर में बैठो, अच्छे भले लेग्स जो होंगे ना वो बर्बाद हो जाएंगे। सो इट्स अ लिटिल सपोर्ट दैट यू हैव टू यूटिलाइज whenever it is said कि अच्छा आपको अब थोड़ा सा यहां पे मूवमेंट कम कीजिए। वो थोड़े समय का सपोर्ट ही आपको चाहिए, लेकिन इस दौरान आपने उस एरिया को स्ट्रेंथन कर लेना है। पांव कमजोर हो गए तो उसका इलाज क्या है? आप धीरे धीरे पांव को इस्तेमाल करें, जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना वो मजबूत होता जाएगा। एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं ना स्पेस में, वो अपने लिम्स को इस्तेमाल नहीं करते, आने के बाद में 6 महीने उनको एक्सरसाइज करना पड़ता है, वहां पर भी एक्सरसाइज करते हैं। तो effort making is a solution to many problem. Not making effort is something that has created a lot of disease. तो अब आपके स्पॉन्डिलाइटिस है, ये तो इन्फ्लेमेशन है ना, आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन हुआ क्यों? दूसरा, अगर सपोज कीजिए कोई ऑपरेशन भी करते हैं तो आपको कहते हैं रिहैबिलिटेशन, यानी मूवमेंट करवाते हैं उस जगह की। तो मूवमेंट नहीं करना कोई सोल्यूशन नहीं, लेकिन मूवमेंट कैसे करना और उसको अगर सही तरीके से गाइडेड वे में अगर किया जाए तो वो इलाज है। बट हम केवल मूवमेंट की बात नहीं कर रहे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। मूवमेंट की केवल बात नहीं कर रहे। पहली बात तो ये आइडिया निकाल दीजिए कि हम लेटे रहेंगे बिस्तर पे तो शायद ज्यादा जी लेंगे। ऐसा आज तक नहीं हुआ और ऐसा कभी नहीं होने वाला। आप जितना काम करेंगे शायद ज्यादा जी लें। तो दूसरा कारण, स्पॉन्डिलाइटिस हुआ क्यों? ये सवाल आपको पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। स्पॉन्डिलाइटिस हुआ क्यों? आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन होता। इन्फ्लेमेशन किस वजह से हो सकता है? 2 कारण से हो सकता है। या तो इन्फेक्शन हो या तो मेटाबॉलिज्म खराब, टॉक्सिन्स ज्यादा बन रहे हैं बॉडी में। इन्फेक्शन है तो आप कोई एंटीबायोटिक ले सकते हैं या फिर नेचुरल तरीके से भी इन्फेक्शन को ट्रीट किया जा सकता है। केवल 30% प्रॉब्लम, 100 में से 30% प्रॉब्लम ही इन्फेक्शन होती है। 70% प्रॉब्लम क्रॉनिक होता है। क्रॉनिक का मतलब आपके शरीर ने पैदा किया और लंबे समय में हुआ पैदा।
ये 70% प्रॉब्लम दवाई में इसके लिए काम नहीं करती। इन्फेक्शन के लिए केवल केमिकल मेडिसिन काम करता है। 70% प्रॉब्लम में आपकी दवाई काम नहीं करती। तो इलाज क्या आप कर रहे हैं? किसी तरीके से इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कि इलाज क्या है, तो करेंगे कहां से? तो क्रॉनिक जो होता है वो शरीर द्वारा पैदा किया। शरीर कब पैदा करेगा कोई प्रॉब्लम? जब उसकी कोई काम करने की कैपेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अब दो चीज बताए, इन्फ्लेमेशन दो कारण से होगा, इन्फेक्शन से होगा या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से होगा। इन्फेक्शन तो है नहीं, खास करके जो स्पॉन्डिलाइटिस वाले हैं उनको इन्फेक्शन नहीं है, तो क्या है? ऑब्वियसली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। कौन सी दवाई आपकी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ठीक करेगी? यानी आपके शरीर की कार्य क्षमता कौन सी दवाई या कौन सा भोजन अच्छा करता है? एक काम कीजिए, बड़ा अच्छा भोजन चूज कीजिए, खाइए और मैराथन दौड़ जाइए। दौड़ जाएंगे क्या? आपकी कार्य क्षमता ना तो भोजन बढ़ाता है और ना कोई दवाई बढ़ाती। दवाई कोई बढ़ा ही नहीं सकती, बल्कि वो कम करती। तो कौन सी दवाई का इंतजार कर रहे हैं अपने आप को ठीक करने के लिए? पिछले 100 साल में तो नहीं हुआ, आगे 100 साल आप वेट कर नहीं सकते। इससे बढ़िया आप जरा अपनी बुद्धि को खोल लें, अपनी आंखें खोल लें। आपके शरीर की कार्य क्षमता कुंभक बढ़ाता है, क्योंकि उसी से आपका शरीर काम करता। अभी मैंने समझाया, एफर्ट मेकिंग हमेशा कुंभक से होता। तो कुंभक कम हुआ तो आपके बॉडी का एफर्ट मेकिंग एबिलिटी कम होगी। अच्छा, क्या ये कैसे देखेंगे आप अपने एक्सपीरियंस में इसको? जैसे ही कुंभक करना शुरू करेंगे, दो चीज आप इमीडिएटली ऑब्जर्व करेंगे। क्या भूख लगनी बढ़ गई, भूख अच्छी होगी, डाइजेशन अच्छा होगा, इसका मतलब मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा हो गया। आप कोई भी चीज का इस्तेमाल आपका शरीर अब करने लग गया, यानी आपने भोजन डाला तो फिर उसका मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स अच्छा हो गया। दो तरीके के रिस्पॉन्स होते हैं आपकी बॉडी में। भोजन डालेंगे तो मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स होगा, कोई गलत चीज जाएगी तो इम्यून रिस्पॉन्स होगा। इम्यूनिटी बढ़ेगी और आपके शरीर को ठीक करने की कोशिश करेगी। क्या आपको मालूम है आर्थराइटिस भी एक तरीके का डिसऑर्डर ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स है? मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स कम होगा, अगर इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? ये दो तरीके के रिस्पॉन्स होते हैं। तो आप जब भी खराब चीज मुंह में डालेंगे, शरीर के अंदर डालेंगे, तो इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ेगा ना। तो बचपन से जब पैदा हुआ एक छोटा 2 किलो का बच्चा, तो उसके शरीर में केमिकल डालना शुरू किया कि नहीं हमने, इम्यूनाइजेशन के नाम पे? आपने कितनी दवाइयां खाई होंगी अपने जीवन में, बताइए? क्या वो आपके बॉडी के लिए डिजाइन हुआ था? नहीं तो दवाइयां तो पेड़ पे लटकनी चाहिए थी। आपके बॉडी का तो डिजाइन ऐसा नहीं है कि वो दवाइयों को एक्सेप्ट करे। तो जबरदस्ती आपको ठीक करने की कोशिश की जाती है दवाई से। शरीर उसमें से 99% के आसपास, 95 से 99% निकाल देता है बाहर। अब आपका लिवर या मेटाबॉलिज्म उसके लिए काम कर रहे हैं, दवाइयों से बचाने के लिए। तो मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स कम करेंगे, इम्यून रिस्पॉन्स ज्यादा करें। कोई प्रूफ है इसका? कोई प्रूफ है कि मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स ह्यूमन बीइंग का खराब हो? कोई प्रूफ है? अब मुझे बताइए, प्रूफ दे रहा हूं। डायबिटीज दुनिया में बढ़ रही है, कम हो रही है? ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज बढ़ रहा है, कम हो रहा है? नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है इस वक्त में। थायराइड बढ़ रहा है, कम हो रहा है? ये तो आप जानते हैं ना, आसपास देखिए, नहीं तो गूगल करके देखिए। कैंसर 12% के रेट से बढ़ रहा है। 10 में से 6 बच्चों को ADHD है। आर्थराइटिस, बोन रिलेटेड इश्यू, घुटने का इश्यू बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ रहा है। कौन सी बीमारी कम हो रही है? यानी ये सब पता है आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से रिलेटेड है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से रिलेटेड है सारी बीमारियां जो बता रहा हूं। और वही अगर र्यूमेटॉइड कह देते हैं तो वो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इम्यून सिस्टम बढ़ा रहेगा आपके बॉडी का, तो आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होना ही है। अभी इतना ज्ञान देने से क्या फायदा? मैं कितना भी ज्ञान दे लूं, क्योंकि 100 साल से गूगल में सारा ज्ञान भरा पड़ा है। इतना ज्ञानी हो गए हम कि सारी बीमारी बढ़ा दी। केवल एक एरिया है जहां पे हमने ग्रो नहीं किया, डेवलप नहीं किया, वो है हेल्थ।
सब एरिया में डेवलप किया, हेल्थ में डाउन आ गए, इतना डाउन आ गए कि निकलने का चांस ही मुश्किल लग रहा है अभी। तो जब आप मेटाबॉलिज्म आप कैसे ठीक करेंगे, क्योंकि वो ठीक करना तो जरूरी है, बिना उसको ठीक किए आपका आर्थराइटिस ठीक नहीं होगा या आपका स्पॉन्डिलाइटिस ठीक नहीं होगा। आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन है, ये दो कारण से आ सकता है, या इन्फेक्शन से या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से। वो आपका शरीर ठीक कर सकता है, उस पर काम करना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी नहीं जानते, शरीर पे काम कीजिए, ठीक हो जाएगा। इतना आसान है, मगर इतना मुश्किल है कि आप अरबों रुपए खर्च करके कोई दवाई निकालिए, वो और ह्यूमन बीइंग को खराब कर देगा। ठीक है, तो कुछ तो हमें सोचना पड़ेगा। आप बाकी चीजों से तो बच नहीं सकते। खराब फूड जो आप खा रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड, हाइब्रिड, प्रोसेस्ड, इनऑर्गेनिक, वो खुद ही खतरा है आपके लिए। आपका शरीर इसको खतरा देता। आप सोचते हैं खा के हम हेल्दी हो जाएंगे, खा के आप बीमार हो रहे हैं। मानवता की हिस्ट्री में, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड में आज तक ऐसा नहीं आया मौका कि लोग खा के बीमार हो रहे हैं। क्योंकि आप जो सोच रहे हैं भोजन है, वो भोजन है ही नहीं, वो जबरदस्ती पैदा की हुई चीज है जो कि प्रकृति के विरुद्ध है। आप एक प्राकृतिक प्रोड्यूस हो, आपको फैक्ट्री में नहीं पैदा किया गया। तो प्रकृति के साथ में जितना जुड़े रहेंगे उतने आप हेल्दी होंगे, जितने कट ऑफ होंगे उतने अनहेल्दी हो जाएंगे। आजकल मौका नहीं है कि आप जुड़ के रह सकें, तो भोजन अवॉइड नहीं कर सकते। एनवायरमेंट खराब कर दिया हमने, वो अवॉइड आप नहीं कर सकते। किसी दूसरे ग्रह पे नहीं जा सकते। दवाइयां इतनी बना दी कि शरीर खराब हो गया, जेनेटिकली डिविएट हो चुका है, जीनोम खराब हो गया ह्यूमन का दवाई की वजह से। उसको भी आप अवॉइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सरकार प्रेशर डालेगी, भाई ये वैक्सीन ले लो, नहीं तो आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। फिर क्या करोगे? घर वाले आपको पुश करते हैं डॉक्टर के पास जाओ, जैसे कि ये फैशन है। आज का फैशन क्या है? डॉक्टर के पास जाओ। एक भी बीमारी ठीक नहीं की, फिर भी डॉक्टर के पास जाओ। सारा पैसा आप कहां खर्च करते हो? जो इंसान सफेद कोट पहन के कहता है कि हम बीमारी ठीक नहीं करते, आप रोज उसके पास लाइन लगा के जाते हो कि नहीं? नहीं तो प्रूफ दे दीजिए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर किसका ठीक हो गया? आर्थराइटिस किसका ठीक हो गया? बता दीजिए, एक इंसान बता दीजिए। लेकिन आप वही लाइन लगा के जाते हैं ना, और वो लोग बहुत गुमान से कहते हैं कि हम तो बीमारी ठीक नहीं करते। ऐसा वो कहते नहीं है, कहते हैं कि बीमारी ठीक ही नहीं होती। तो आपने आंखें नहीं खोली हुई, बस। और क्या? कोई और, आपने बीमारी में पैसा इन्वेस्ट किया, बीमारी बढ़ गई। अब हेल्थ में पैसा इन्वेस्ट करो, हेल्थ बढ़ेगा। आप जहां इन्वेस्ट करेंगे वो बढ़ जाएगा। आपने बीमारी में इन्वेस्ट किया, बीमारी बढ़ गई। हेल्थ में इन्वेस्ट करो, हेल्थ बढ़ जाएगा। कुंभक हेल्थ बढ़ाने का तरीका है। मेटाबॉलिज्म आपका कैसे इंप्रूव होगा? कुंभक से इंप्रूव, है ना? तो फिर आप देखेंगे कि आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन में भी जब जोर अगर आप पहले लगाएंगे, अगर ज्यादा लगाएंगे, तो लालच नहीं करना। हम हमेशा ये कहते हैं, धीरे धीरे करके अपने बॉडी की कैपेसिटी बढ़ाइए, इसको रेगुलेशन में रखिए। इसको अगर नॉर्मल एक हेल्दी इंसान भी ज्यादा जोर लगाए तो उसको भी इन्फ्लेमेशन होता है, बॉडी में पेन आ जाता है। तो आप अपनी कैपेसिटी से करना शुरू कीजिए, बॉडी का टॉलरेंस बढ़ाइए, बॉडी की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ाइए, आप देखेंगे ये प्रॉब्लम बिल्कुल निकल जाएगी। कोई और क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वप्ना मैम, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Swapna ma'am. Hello, can I Swapna ask? ma'am. Yes. Yes. Okay, actually, I want to ask that, like my husband, who is around 60 years old, so whatever he eats, he has to go for motion at least twice a day. So khana unka theek hai, nutrition is also well, but he's losing weight also at the same time. So Is should there he any other join gym problem? program? No, there is only a slight hypertension, not much. That too, he takes twice or thrice in a week medicine. He walks well, and he's very active otherwise in his life and as well as in his work. So, but So the weight loss control है, of motion is not there. Yes, हाँ, जैसे आप कह muscle रहे थे wasting हो रही हो, हाँ, control of जैसे muscle motion is wasting हो not रही there. हो,
It's not, I will say, control. Matlab digestion is not proper, that he has to go for. Okay. So Now, what program he should join? no, I'm telling you. See, as I said, when the muscle wasting is happening, muscle wasting का मतलब क्या होता है? ऐसा तो नहीं है कि muscle waste कर रहा है. It is that it is not building up. तो वो कम होता जा रहा है, मसल मास कम होता जा रहा है, वेट कम होता जाता है. ऐसे में वेट कम क्यों हो रहा है? इसका डायरेक्ट कोरिलेशन है एज द एज ग्रोस. सी what we call as a little hypertension or blood pressure, we have to come to this understanding that blood pressure is not the pressure of blood on the arteries. It is against science. साइंस के खिलाफ में है ये, जो ये आपको बताते हैं ना ब्लड का प्रेशर आर्टरी पे. इट इज नॉट दैट. आवर बॉडी रिक्वायर्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर टू डू एनी काइंड ऑफ फंक्शन. आप देखते हैं इंजन होता है ना, देयर इज एन इंजन, अनलेस एंड अंटिल द प्रेशर बिल्ड्स अप द इंजन विल नॉट वर्क प्रॉपर्ली. सो the pressure is there across your body. Every cell has this osmotic pressure. Now with age, what happens? We call this aspect as Vyana Paksha, Vyana Shakti of this body. Now without the proper amount of pressure in the body, the temperature will not build up, which we call as metabolic heat, Jathar Agni. जठर अग्नि जो है वो तभी बनेगा अगर आपके बॉडी का प्रेशर प्रॉपर होगा. प्रेशर आपको एक और एग्जांपल दूं, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने ऊपर. यू होल्ड योर ब्रेथ टिल योर कैपेसिटी, डू इट फॉर 15 मिनट्स. 10-15 मिनट के लिए सांस रोकिए, बीच बीच में सांस रोकते जाइए. आप देखें व्हाट यू विल सी इज सडनली योर बॉडी विल बिकम वार्म एंड यू विल स्टार्ट स्वेटिंग. पसीना आ जाएगा. आपने कोई एक्सरसाइज नहीं किया, बट जस्ट बाय होल्डिंग द ब्रेथ you will start sweating. What happens by holding the breath? The pressure gradient corrects. The internal pressure gradient of the body corrects, and thereby the flow of anything in your body starts happening more. Right? When the temperature is proper and because of the pressure gradient, things flow. This combination is called as metabolism of the body. इन आयुर्वेदा वी कॉल दिस जठर अग्नि कहते हैं, या फिर इसका बड़ा आयाम है जिसे कहते हैं गाढ़े पत्ते अग्नि. Now जठर अग्नि is the factor because of which digestion happens. What we simply call as digestion. If your jठर अग्नि is proper, your digestion will happen proper. It also reduces with age. Age के साथ ना वो थोड़ा कम होता है. When your body is not able to utilize food and not able to distribute it properly, the combination what I am calling as metabolism, then muscle will not regenerate whenever it is required. With that pace, the pace of regeneration will come down. आपके शरीर में नई चीज बनने की जो गति है वो कम हो जाएगी. And because of something that we may not be even be able to know, कि if there is some problem inside your body and we are not able to detect it, or some organ difficulty, like for example the first step of metabolism happens in liver, अगर वो difficulty भी साथ में है तो because of lack of regeneration the body will start losing weight. Now ये indicator है, this is an indicator that you correct your metabolism. How will you correct your metabolism? Normally what we know is do some kind of an exercise, walking, jogging or some kind of a physical activity. हम ये कहते हैं कि ये करिए. Yes, it also helps, but only to a certain extent, because the internal function will not improve correspondingly. If you do external activity, internal function may not improve correspondingly. So you will have to do some internal exercise. अगर आप करें तो आपको जल्दी फायदा होगा. You will be able to improve the metabolism and you will be able to arrest the muscle wasting. देखिए एक आइडिया है हमारा कि हमें इतना वेट होना चाहिए. अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा वेट होगा ना, थोड़ा पतला हो जाएंगे, अरे तुम तो पतले हो गए. So when you do kumbhak, the function improves. What happens? Your body will take the right weight. My weight was more than 106 kgs. किसी टाइम पे मेरा वेट 106 किलो
106 6.5 किलो था। आज कुंभक करने के बाद में, बहुत पहले की बात बता रहा हूं, इट नेवर इंक्रीज्ड, बट आई रिमेन इन दिस स्टेट, आई एम इन दिस स्टेट फॉर इयर्स। तो क्या हुआ, इंटरनल अगर इट माइट टेक सम टाइम, है ना, थोड़ा टाइम ले सकता है, 3 महीने 6 महीने साल भर, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन एंड प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, बट दिस इज समथिंग विच हैज टू बी केप्ट अलोंग। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, देखिए आप ट्रीटमेंट अवॉइड नहीं कर सकते, तो अपने बॉडी को इंप्रूव तो कर सकते हैं आप। इसके लिए तो ये तो किसी के साथ में क्लैश में नहीं है कि आप दवाई खाएंगे तो कुंभक नहीं कर सकते, या आप अच्छा भोजन करेंगे तो कुंभक नहीं कर सकते, या आप कोई और योगा प्राणायाम कर रहे हैं तो कुंभक नहीं कर सकते। आप ये तो कर ही सकते हैं। दिस इज अ प्रिसाइज हेल्थ मेथडोलॉजी, है ना, हेल्थ का फॉर्मूला है, तो ये जरूर करते रहना चाहिए। ऑल्सो इफ यू वांट टू टेक सम एक्सटर्नल सपोर्ट, देन टेक सम नेचुरल सपोर्ट। अंगावर येतं नाही तर ते थोड़ा नेचुरल सपोर्ट ले लें, जैसे आयुर्वेद का, पंचकर्मा का सपोर्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं। बहुत जरूरी पड़ जाए इमरजेंसी में ही आपको केमिकल सपोर्ट लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी सपोर्ट बाहर से इज अ मैनेजमेंट नॉट अ ट्रीटमेंट। चाहे वो केमिकल दवाई हो, चाहे आयुर्वेदिक दवाई हो, वो ट्रीटमेंट नहीं होती है, वो मैनेजमेंट होती है। ट्रीटमेंट तो आपकी बॉडी करता है, ठीक तो आपकी बॉडी ही करता है, उसका जो जिसे कहते हैं ना रिकवरी स्ट्रेंथ आप बढ़ा दीजिए, ये कुंभक से बढ़ाते हैं, तो ये जरूर करना चाहिए, ठीक है ना, तभी आप देखेंगे। अदरवाइज क्या, यू विल कीप ऑन टॉकिंग दीज वर्ड्स बट देयर इज नो सॉल्यूशन। कोई भी दवाई मेटाबॉलिज्म को नहीं बढ़ाती है। सो इवन इफ यू टॉक मसल वेस्टिंग, व्हाट इज द सॉल्यूशन? Solution is improving the metabolism. How will you improve it? Through kumbhak. Rest, if the person wants to do some walking, some body exercise, yes, that is also good. But this is like precisely addressing the problem. Which program to join? Ameda slash. This is not Ameda, Ashtang Chikitsa, sorry. Ashtang Chikitsa is Ashtang Chikitsa. Okay. Thank you. Okay. Thank you so much. M.A. Ali, sir, please ask your question. M.A. Namaste. Ali, sir. Namaste, Guruji. Namaste ji. I am having ankylosing spondylitis, an autoimmune disease. Yes. I'm having a heart problem with 2 stents inside. Can I take up this program? That's what I wanted to ask. We run program where Kumbhak program for people who have stent in their heart and for the heart problem also. So first of all, your heart problem, if you want to improve your heart, then you must do Kumbhak. First of all, this. The second thing is, apart from that, you have, like you said, you have ankylosing spondylitis. Now, ankylosing spondylitis, autoimmune disorder, there is no medicine for it. You can't correct the autoimmune disorder with medicine. In fact, what we have seen is people who are in long-term medication, their situation actually degrades. So, if you have any other problem, please write down, put down your number. People, that's why I said put down your number and just list down all the problems. We'll analyze it and we'll direct you to the right kind of program. Thank you. Any other question from the participants? You can ask your question. या हेलो, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। हाँ, ये जो रूट कॉज एनालिसिस है, ये कब करेंगे? शुरू में करेंगे या लास्ट में करते हैं? एंड हाउ इज इट डन? See, the root cause analysis, when we say, ये बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, तो म्यूट कर लेंगे। So root cause analysis. Now everyone does some kind of analysis in their daily life, isn't it? You have family members and you see the other member and see the mood of the other member.
and say the right thing at the right time, or wait for the right time, isn't it? That's what we do. How do we find out that the person is in a difficult mood or a happy mood? Just by looking at a person you can find out, isn't it? If you are living with a person, after a certain period of time, you are able to find out if the person is sad or happy or not feeling well or feeling well, what, isn't it? Just by looking at something, we are able to find out if the person is good or okay or not okay. Now, if you go a little deeper, you'll be able to find out even with more detail. Like for example, I'll tell you an example. A blood pressure patient, whenever a blood pressure patient applies any kind of effort or does any kind of effort, in that effort making, what he feels? Difficulty in breathing. That means what is labored breathing, isn't it? Now, if you are feeling labored breathing, we can say the heart strength is not that okay or weak. Now, if I number your breath, we'll even be able to calculate the kind of damage that has happened. Not only that, let me give you another example. Like for example, a depressed person. Now, a depressed person, what you will see, and you can observe this, the ability of the person to get up and feel good or do some activity is very, very low because he's feeling a lot of load in his mind. Now, if you go closer and watch the breath, you'll see the inhalation is very, very shallow. The exhalation is very, very long. Now, if you just increase the inhalation, the person will feel a little better. I'm telling you the mechanics of how things are done. But this is not the only, or this is not complete story. I'll not be able to tell you the complete story in this short time. I'm telling you the crux of it. It is not just inhalation which makes your health better. It is inhalation as well as exhalation. It is the hold on your inhalation and the exhalation. So there are 4 basic things: inhalation, hold, exhalation, hold. But there are many, many permutation combination of this, because of which within your body you have a certain strength. Apart from that, we also make you do some kind of experimentation with how you feel, what are the symptoms. We make you do experiments on your breath with numbers, and we make a kind of in the mind a kundali of that. Apart from that, we make you do some experiments with your emotion, with your see and observe your symptom and write down for us. When we read all these things, we create a map out of it. We create basically a map out of it, which aspect of this person is weak. Now telling you how we can correct it also. Like for example, if somebody is suffering from autoimmune disorder and there is a liver issue also along with it. Now if you go close to a person and see how the person is breathing, the person will be breathing not in rhythm, first of all, not in rhythm, as well as the person will have very, very long exhalation and very short inhalation. So we design a formula. If we want to address the liver and the autoimmune disorder together, right, we design a simple formula. Your inhalation, the inhalation capacity and the hold capacity has to be 1:4. Your hold capacity and the exhalation capacity has to be 4:2. So we'll give you a number. Like for example, we'll give you a simple number of how to do breathing. 4:16:8. The moment you start doing it, you are making your breath rhythmic as well as you are addressing the liver. Now, if you go closer to a person who has a kidney disorder, kidney problem, you will see that person is inhaling long, exhaling short. So we'll design a different formula for that kidney patient. So it will be 16 count inhalation,
8 count hold, 4 count exhalation, and so on and so forth. Now, having said that, one thing I've said, but apart from that, your kidney doesn't work without your liver. Your liver doesn't work without your heart. Your heart doesn't work without your lungs. Everything is integrated. So just telling you a single formula will not help you if along with it you do a holistic approach of addressing every organ and function within the body. So the program is designed in such a manner where you do a generic practice initially, which is a holistic one. Then we embed the right kind of customized practice in between those practices so that it helps you specifically, very, very precisely. Apart from that, you address the whole aspect. The holistic approach is also there in the module. So your customization will be done in the end. First, you will be taught generic practice, which everyone will be practicing, but we'll put number in the end. So initially, to begin with, we will tell you to do some experimentation with yourself and fill up a form. While you are doing the generic practice, we will customize your module and teach you at the end of the learning phase. This is how we go ahead. I think that's it. So Anybody else from the participants who would like to ask their questions? I think there are no more questions. Thank you so much to all the lovely participants and Swamiji to answer their questions. अभी भी कुछ आपके questions अगर रह गए हैं तो आप लोग webinar group में लिख सकते हो so that we will directly get the answer from Swamiji and answer your question. So thank you so much. Stay well, stay healthy, and good night. Signing off, Rachna.